with students. Today's topic basically deals with a tower in the sky, saying that satellite-based communication and navigation. So communication, as we all know, it's part of our life day to day. So morning to evening till we go to bed, we communicate with each other in a way or other, right? But there are many ways of communication, and today the topic is communication using satellite. So that is the main topic. Right? So I'm JP Joshi, Jayan Joshi, and I will start presenting about satellite communication and navigation. Okay, so let us first start with basic thing about why when communication was already there since centuries before, right? So when even the written language was not there at that time, also there were communication, and people had their own way of communicating. But slowly, as the mankind evolved and everything evolved, so the way of communicating also evolved, and ultimately we have reached to a era of satellite communication. So, in today's life, everybody knows that without satellite, it is not possible to think of our life today, right? So, just see the theme, that tower in the sky, right? So, on the left side here, just you can see small picture. There are two antennas. These are on the ground. So these are ground stations. So one is the uplink. That means some information is being transmitted. So whenever you want to communicate, there should be a source and there should be a destination. So when I am speaking and you are listening, so likewise, any information from one end is to be sent to another end, right? So when information from the source is being ट्रांसमिटेड और इज बीइंग अपलोडेड, सपोज मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं, या मेरे पास कोई लेटर है, मुझे किसी को देना है तो मेरे हाथ में लेटर है, तो आई बिकम द सोर्स. लेकिन जब मुझे जाना है तो इफ इट इज नियर बाय आई कैन गो पर्सनली एंड गिव इट, right? If it is little more far, I use some transportation system, ground transportation system, and do the work. But when it is too far, I use train or aeroplane like that. But when it is transatlantic, say for example, from one continent to other continent, then these things won't work. So then what generally happens, that you would have seen the radio relay tower when you go on some roads and everything. There are repeaters, they are called radio repeaters. So repeater does nothing, they are passive things. So they have antenna on both the sides, right? So they receive the signal from the earlier tower, they receive it, they simply retransmit it in the forward direction. So repeater does nothing, they do not contribute their own thing, but they simply receive the signal and transmit, because after certain distance the signal by itself cannot travel longer because of the nature of the electromagnetic term. So that's why the repeaters are put periodically. You would have seen at regular interval, you would see the repeaters. Repeaters are only to carry forward like a relay race, right? So the baton is passed, so like that signal is passed from one tower to another, relay tower to another, like that, right? Now, suppose, can you think how many number of towers would be required if you really want to cover the entire globe? That is enormous. So now if you want to really reduce the number of tower, what would you do? You raise the height of the tower, right? Because whatever relay tower which we are seeing, the height is limited. That is, it has got its own limitation in many other things, like you cannot, we must have a realizable structure. You cannot put such a enormously long tower which cannot be maintained, right? So these are the issues. But hypothetically, suppose if अगर हम ये सोचते हैं कि एक ऐसा टावर है जिसको मैं बहुत ऊंचा कर दूं, तो जैसे 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 हमें कुछ चीज देखनी है, तो हम अगर ऊंचाई पे जाते हैं तो बहुत ज्यादा सिनेप्टिक व्यू आता है, बहुत ज्यादा चीजें देख सकते हैं, क्योंकि हमारा
जो एरिया है वो देखने का बढ़ जाता है। तो ये जैसे सिग्नल टावर जो है आप ऊंचे ऊंचे उसकी ऊंचाई बढ़ाते जाते हैं तो उसका एरिया बढ़ता जाता है। हाँ, हालांकि इसके साथ ये चीज भी है दैट यू शुड हैव अ सफिशिएंट पावर सो दैट सिग्नल रीचेस टू दैट एरिया, बट आप कम से कम उसको देख सकते हैं, वहां तक जाने की पॉसिबिलिटी है। तो अगर आपको इसको रिड्यूस करना है तो आप इतना एक लंबा टावर खींच दीजिए कि आप बहुत ही लिमिटेड टावर से ये काम चला सकते हैं। बट देन अगेन द प्रॉब्लम इज ऑफ हाउ टू रियली बिल्ड दैट हाइपोथेटिकल टावर। सो आर्थर क्लार्क करके एक साइंस फिक्शन जो राइटर थे 1945 के आसपास, उन्होंने एक रेडियो मैगजीन के अंदर अपना एक आर्टिकल लिखा था एंड ही थॉट ऑफ एन सिस्टम कि एक ऐसी चीज होनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए टावर के अंदर है क्या, ये सैटेलाइट का टावर जो लेफ्ट साइड के पिक्चर में आप देख रहे हैं, तो आप देखिए कि इसी टावर में कुछ नहीं है, ये सपोज ये बड़ा टावर है, एक तरफ ये एंटेना है जो यहाँ से रेड कलर का सिग्नल जाता है इसको रिसीव करता है, ये यहाँ से दूसरी तरफ दूसरी डायरेक्शन में उसको रीडायरेक्ट करके उसको ट्रांसमिट करता है। अगर ये ग्राउंड पे यहाँ से यहाँ खड़ा है तो ये इसकी रेंज इतनी बनती है, लेकिन अगर ये मैं इसको बिल्कुल स्पेस में ले जाता हूँ इसी टावर को एकदम ऊपर नीचे ग्राउंड पे इरेक्ट करने के बदले ही, इफ आई एम एबल टू सस्पेंड अ टावर इन द स्काई, माय वर्क इज डन, because the signal does not see whether it is erected from ground or it is being suspended from the suspended into space। उनको तो यही चाहिए कि मेरे जो सिग्नल यहाँ से जाता है वो किसी चीज को रिसीव, कोई चीज उसको रिसीव करनी चाहिए, अगर जरूरत पड़ी तो एम्पलीफाई करनी चाहिए अगर वो वीक हो गया है तो, और वहां से उसको रीडायरेक्ट दूसरी कोई भी डायरेक्शन के अंदर आप उसको पावरफुल बना के उसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज नथिंग बट अ टावर इन द स्काई, कि आप जो हम जिसको ये सैटेलाइट बेस की जो बात करते हैं वो यही है कि आपका जो हाइपोथेटिकल टावर जो सस्पेंड किया है स्काई के अंदर, दैट इज नथिंग बट ए सैटेलाइट। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम मतलब जो कम्युनिकेशन है अगर हमें सैटेलाइट के बेस के जरिए करना है तो उसके तीन मेन सेगमेंट होते हैं। जैसे एक आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेस सेगमेंट है जिसके अंदर कम्युनिकेशन सैटेलाइट खुद आता है, और टेलीमेट्री एंड टेलीकमांड, ये मेन चीजें है, मेन इंग्रेडिएंट स्पेस सेगमेंट के। दूसरा है ग्राउंड सिस्टम। तो ग्राउंड सिस्टम के अंदर हब और गेटवे स्टेशन, आपके नीचे से ग्राउंड पे जो ट्रांसमिट करना है सिग्नल तो उसके लिए आपको एंटेना और एक ग्राउंड स्टेशन चाहिए। सिमिलरली रिसीव के लिए भी चाहिए, और आपको यूजर टर्मिनल चाहिए, क्योंकि ये तो बड़े बड़े जो एंटेना हर कोई नहीं लगा सकता। ग्राउंड स्टेशन जो पूरा एक अर्थ स्टेशन है वो हर कोई अपने लिए नहीं खड़ा कर सकता। तो ये गेटवे स्टेशन है, वहां से यूजर तक जाने के लिए जो भी व्यवस्था है तो हम उसको बोलते हैं यूजर टर्मिनल, राइट। और कम्युनिकेशन की चैनल, तो अपलिंक एंड डाउनलिंक जो इसके पहले वाली अपने उसके हम स्लाइड में देखा था, यहाँ पे भी आप देखिए ये जो पिंक कलर की लाइन है ये जो दिख रही है जिसमें अपलिंक लिखा है, फ्रॉम ग्राउंड स्टेशन यहाँ पे हब और गेटवे अर्थ स्टेशन से लेके इट इज बीइंग डायरेक्टेड टू सैटेलाइट, सैटेलाइट में प्रोसेस होके फ्रीक्वेंसी को ट्रांसलेट करते हैं, वो थोड़ा हम बाद में देखेंगे। और उसको अल्टीमेटली जो वहां तक पहुंच, जब क्योंकि सिग्नल 36,000 किलोमीटर, वो 36,000 किलोमीटर क्या है वो भी हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। बट एट ए हाइट ऑफ 36,000 किलोमीटर जनरली कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर पार्क्ड इनटू दैट ऑर्बिट। तो वहां तक पहुंचते पहुंचते सिग्नल बहुत वीक हो जाता है, तो वो वीक सिग्नल को वहां से ऐसे ही अगर रीट्रांसमिट कर दिया नीचे की तरफ, तो वो फर्दर इट हैज टू अगेन ट्रैवल 36,000 किलोमीटर, it will become so weak that our receiving antenna on ground will not be able to capture those signals, right? So it will be a communication failure। तो क्या करेगा सैटेलाइट जो खुद है वो उसी सिग्नल को जो उसने रिसीव किया है उसको रिसीव करके प्रोसेस करके बहुत ताकतवर एक एम्पलीफाइड वर्जन करेगा, और उसको ट्रांसमिटिंग एंटेना, ये ट्रांसमिटिंग एंटेना अभी सैटेलाइट की मैं बात कर रहा हूँ, सैटेलाइट के अंदर भी दो टाइप की एंटेना होती है। एक रिसीव एंटेना सैटेलाइट की जो ग्राउंड से सैटेलाइट के ग्राउंड से भेजे हुए सिग्नल को रिसीव करती है, और सैटेलाइट की ट्रांसमिटिंग एंटेना जो ग्राउंड की तरफ अपने सिग्नल जो एम्पलीफाई किए उसको रीट्रांसमिट करती है। तो दिस बिकम्स एन टोटल कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ एन सैटेलाइट, जिसके अंदर स्पेस सेगमेंट,
ग्राउंड सेगमेंट और कम्युनिकेशन चैनल आता है। तो टाइप ऑफ सैटेलाइट की थोड़ी बात कर लेते हैं। बेसिकली आप देखिए उसमें 4 टाइप के सैटेलाइट है। देयर आर मेनी, वी कैन कैटेगराइज इट इन मोर टाइप्स, बट बेसिकली कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिसमें हम इंडिया की अगर बात करते हैं इसरो की, तो इनसेट और जीसेट क्लास के टाइप के सैटेलाइट उसमें फॉल होते हैं। रिमोट सेंसिंग और वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट, जिसमें IRS और कल्पना और इस तरह के ये नाम के जो सैटेलाइट है वो उसमें फॉल होते हैं। और एक वीक पहले आपने रिस्पेक्टेड नागरानी साहब से बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल में उसके बारे में हम सब ने जाना था। उसके बाद आता है नेविगेशन सैटेलाइट, जिसमें हमारे IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, राइट, तो वो टाइप के जो सैटेलाइट है वो नेविगेशन टाइप के सैटेलाइट आते हैं। और एक चौथा है साइंटिफिक मिशन, जो कि अर्थ के आसपास घूमने वाले सैटेलाइट नहीं। ये जो पहले 3 टाइप है, दे जनरली revolve around Earth, right? Whether it is remote sensing, navigation, or communication, but the scientific satellite, or sometimes we also call that interplanetary mission, क्योंकि एक प्लेनेट से दूसरी प्लेनेट तक जाने वाले जो हमारे मिशन या दो सैटेलाइट है, तो इनिशियली तो वो अर्थ के आसपास घूमते हैं, बट अल्टीमेटली जब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप करके बाहर एकदम दूर की तरफ चले जाते हैं, आइदर टुवर्ड्स मून और मार्स, तो उस तरफ वो उस समय वो अर्थ के आसपास नहीं घूमते हैं, बट उस डायरेक्शन में तो चले जाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक मिशन। पहले जो हमने शुरुआत की थी 1975 से, तो उसमें आर्यभट्टा टाइप का सैटेलाइट था। फिर 79 और 81 में हमने भास्करा 1 और 2 बनाया। फिर सीरीज की जो सैटेलाइट थे 1981 टू 82, फिर स्रॉस 87 में बनाया, 92 के अंदर स्रॉस बनाया। और सबसे पहला, क्योंकि आज कम्युनिकेशन की बात हो रही है, तो इंडिया और इसरो का सबसे पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट हमने बनाया 1981 में, जिसका नाम था, ये नीचे आप देख रहे हैं इसका लगा फोटो, एप्पल। दिस एप्पल स्टैंड्स फॉर एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। तो एरियन नाम का जो ईसा का रॉकेट था, उनकी एक फ्लाइट थी जिसके अंदर 2 सैटेलाइट जा सकते थे। एक उनका अपना था और दूसरा एक सैटेलाइट जिसको को पैसेंजर, जैसे हम हमारी गाड़ी में अगर पीछे की सीट खाली है तो अपने दोस्तों को या पड़ोसी को बोलते हैं कि चलो भी आपको भी आना है तो हम ले जाएंगे, राइट। सो लाइक दैट जब एरियन की ये फ्लाइट हो रही थी, एरियन रॉकेट की ये फ्लाइट, तब विक्रम साराभाई, वो ग्लोबली उनके जो रिलेशंस थे स्पेस फेरिंग नेशन से, सो बाय वर्च्यू ऑफ दोज रिलेशंस एस्टैब्लिश्ड मच अर्लियर बी व्हेन ये जब एप्पल का काम शुरू किया उसके पहले, तो ईसा ने हमें ऑफर दिया था, इफ यू आर एबल टू मेक सैटेलाइट विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, कि उनकी फ्लाइट तो तय थी जाने की, राइट। तो उन्होंने हमको जो बोला था, तो वी मेड दिस सैटेलाइट सम स्टिपुलेटेड टाइम। और वो सैटेलाइट क्योंकि एरियन पैसेंजर से जाना था, एरियन रॉकेट से, इसलिए उसका नाम हमने दिया एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। तो ये सबसे पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट था। उस 500 किलोग्राम का वेट था, 2 ही ट्रांसपॉन्डर थे। और ट्रांसपॉन्डर और थोड़ी डिटेल हम 1-2 स्लाइड के बाद बात करेंगे। तो ये पहला सैटेलाइट बहुत ही छोटा था, 500 किलोग्राम का वेट था। और राइट साइड में आप देखिए मॉडर्न सैटेलाइट के अंदर ये GSAT-30 और ये 2020 के अंदर जो हमने सैटेलाइट था, बहुत बड़े सैटेलाइट। तो ये 500 किलोग्राम के सामने जो GSAT-11 था, वो रफली 6000 किलोग्राम का सैटेलाइट हमने भेजा था, राइट। सो दिस इज ये क्वांटम जंप फ्रॉम 1981 टू 2020। ये 50 साल के अंदर धीरे धीरे हमने टेक्नोलॉजी को एक्वायर किया, हम सीखते गए, हम फेल भी होते गए। तो आई शुड एट दिस जंक्चर मैं आप सबको एक बात जरूर शेयर करना चाहूंगा कि इसरो ने जो कुछ भी सीखा है वो अपने बलबूते पे सीखा है, और ज्यादातर हमारे फेलियर से सीखा है। मैं तो कभी कभी ये भी बोलता हूँ कि इसरो की जो सक्सेस स्टोरी है उसका बेस ही फेलियर है। सबसे पहला रॉकेट में भी हमें कुछ प्रॉब्लम आई थी, जो हमने SLV बनाया था वो भी फेल हुआ था, उसमें से हम सीखे। और पहला जो हमने आर्यभट्टा बनाया था वो लॉन्च तो हो गया, लेकिन कुछ समय के थोड़े समय के बाद ही उसने काम करना बंद कर दिया, तो वहां से भी हम सीखे। तो वी लर्न फ्रॉम अवर फेलियर्स। तो उसके साथ ये देख के देखते देखते अभी हम यहाँ तक पहुंचे हैं।
अब ये जो सैटेलाइट होते हैं वो जनरली अलग अलग ऑर्बिट के अंदर हम, क्योंकि unless you know that in which orbit you want to put your satellite, it is very difficult to design a satellite. तो जैसे मेन ऑर्बिट होती है तीन टाइप की, पोलर ऑर्बिट या जिसको लो अर्थ ऑर्बिट जिसको हम बोलते हैं, और एक मीडियम अर्थ ऑर्बिट और एक जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। ये तीन टाइप की जो ऑर्बिट जनरली सैटेलाइट कम्युनिकेशन में ये यूज होती है। तीनों के अलग अलग एडवांटेजेस है, तीनों के लिमिटेशंस है, तीनों की अपनी पिक्युलरिटी है। अगर आपको ये वेदर फोरकास्टिंग और रिमोट सेंसिंग टाइप के अगर हम सैटेलाइट बनाते हैं तो आपने सुना होगा पहले के लेक्चर के अंदर कि जनरली वो लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर हम उसको पार्क करते हैं। मिडिल अर्थ ऑर्बिट के अंदर हम जनरली हमारे नेविगेशन टाइप के सैटेलाइट को हम वहाँ पे पार्क करते हैं। और जीटीओ मतलब जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में मेनली मोस्टली हमारे कम्युनिकेशन टाइप के जो सैटेलाइट है वो हमेशा उसी में कहते हैं। तो इसका रीजन क्या है, थोड़ा आगे देखते हैं। आप देखिए, ये पोलर ऑर्बिट की बात करते हैं जो कि लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर, लो अर्थ ऑर्बिट की कैटेगरी में आता है। तो आप देखिए कि ये जनरली वो रिमोट सेंसिंग के बारे में या अर्थ ऑब्जर्वेशन के सैटेलाइट के बारे में जब आपने सुना होगा तो ये उसका काम ही ये है कि अर्थ की इंफॉर्मेशन लेना। तो इंफॉर्मेशन कैसे लेता है, इट हैज गॉट कैमराज ऑन बोर्ड, मतलब सैटेलाइट के अंदर कैमराज लगे हैं, उसके अंदर उसके इलेक्ट्रॉनिक्स लगे हैं। तो ये पिक्चर लेता कैसे है, तो ये लेता ऐसे है कि आप देखिए जो पोलर ऑर्बिट है वो पोल टू पोल घूमती है। आप देखिए लेफ्ट साइड के अंदर जो थोड़ा एनिमेशन है वो फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ऑर्बिट हमेशा फिक्स रहती है, ऑर्बिट डजंट चेंज। उसकी एल्टीट्यूड अगर पहले से आप करते देखिए, ये सेकंड लाइन में ऊपर लिखा है 400 किलोमीटर टू 1000 किलोमीटर, दैट इज द स्पान। इसके बीच में कहीं पे भी आप हम जनरली डिफरेंट टाइप ऑफ ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को वहां पार करते हैं। तो 400 और 1000 इतना वेरिएशन क्यों आता है, वो इसीलिए है कि अगर आपको क्लोजर और एकदम डिटेल वाले पिक्चर्स और इंफॉर्मेशन चाहिए, देन यू शुड बिकम क्लोजर टू द अर्थ। so then you would put your satellite roughly around 500 to 400 to 500 किलोमीटर। लेकिन अगर आपको ज्यादा एरिया चाहिए, ठीक है, जब आप क्लोज में आते हैं तो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जो आप जितना एरिया देख पाते हैं वो कम हो जाता है, और जब आप दूर जाते हैं तो आपको ज्यादा दिखाई देता है। तो हायर एल्टीट्यूड पे जब आप जाते हैं तो आपका एरिया कवरेज जो है वो बढ़ जाता है, लेकिन आपकी डिटेल थोड़ी कम होती है। तो दैट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ एप्लीकेशन कि हमें उस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से क्या काम लेना है, राइट। तो कार्टोग्राफिक एप्लीकेशन करना है तो डेफिनेटली हम थोड़ा नीचे की तरफ रखेंगे। और अगर क्रॉप का असेसमेंट करना है जिसमें आपको इतनी ज्यादा क्लैरिटी, मतलब क्योंकि वो एक अलग बिल्कुल साइंस है जो सिग्नेचर बेस्ड है, राइट। तो उसके लिए आप थोड़ा उसको ज्यादा कवरेज, क्योंकि उसमें कवरेज थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू इट्स डिटेल पिक्चर। ये जो ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट के अंदर ये सैटेलाइट फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल घूमता रहता है, ठीक है। अगर आप देखिए कि कोई भी पिक्चर जब आप लेते हैं तो वो 2 डायमेंशन की हम यहाँ पे बात करते हैं, तो एक हो गया वाई और एक हो गया एक्स। तो कोई भी हमारा जो पिक्चर हम ग्राउंड पे लेते हैं या हम कागज पे कोई भी पोस्टर में पिक्चर देखते हैं तो उसका एक्स और वाई तो हमें पता है, लेकिन जब आप स्पेस में जाते हैं तो एक्स और वाई कहाँ से लाएंगे। तो ये जो वाई डायमेंशन जो है उसका, वो तो सैटेलाइट जो अपनी पोलर ऑर्बिट में नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आता है तो उसी दौरान वो वाई डायमेंशन तो मिल जाता है, बट एक्स डायमेंशन वो कहाँ से मिलेगा। तो आप देखिए अर्थ जो हमारी उस ऑर्बिट के जस्ट बिलो, वो उसकी जो नेचुरल मूवमेंट है, हाँ, ईस्टवर्ड मूवमेंट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट वो घूमता रहता है, तो वो अपने आप वो एक्स डायमेंशन दे देता है। तो एक्स और वाई ऐसे मिलके हमारे ये पिक्चर बनते हैं। तो दिस इज पोलर ऑर्बिट। और दूसरी इंपॉर्टेंट ऑर्बिट है हमारी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, और कम्युनिकेशन सैटेलाइट हमारा मोस्टली जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर होता है। आप इसमें देखिए कि अब ये जो प्रीवियस स्लाइड जो हमने देखी पोलर ऑर्बिट या लो अर्थ ऑर्बिट की जो हम बात कर रहे थे, तो उसके अंदर सैटेलाइट का इस एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए टाइम कितना चाहिए, दैट इज जस्ट दे नीड 90 मिनट्स ऑलमोस्ट, राइट। तो 90 मिनट में ये वो एक ऑर्बिट कंप्लीट कर देता है।
दैट व्हाट डज इट मीन कि सपोज वो कश्मीर के ऊपर आया है और उसने एक ऑर्बिट खत्म कर दी, तो वापस दोबारा उसी स्पॉट में आने के लिए इट वुड रिक्वायर 90 मिनट्स और 1.5 आवर। लेकिन दूसरी बार वो ऑर्बिट कंप्लीट करके उसी स्पॉट पे आएगा तो इट विल नॉट टेक, उसको नीचे कश्मीर नहीं दिखेगा क्योंकि अर्थ वुड हैव मूव्ड ईस्टवर्ड, है ना। तो अब जो नीचे थोड़ी ईस्ट की तरफ खिसक गई होगी, अभी वो वेस्टवर्ड रीजन के दूसरी पास के अंदर वो दूसरे अपनी जो ऑर्बिट है उसके अंदर दूसरे वो पिक्चर लेना शुरू कर देगा। सो लाइक दैट कोई भी एक पास में एक जगह पे रफली 15 मिनट के आसपास की उसकी विजिबिलिटी रहती है। तो अभी आप सोचिए कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है उसका पहले एप्लीकेशन की बात करते हैं। उसका एप्लीकेशन है वॉइस है, डेटा है, पिक्चर है, मूवी है, हम जो भी है सारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है। हम लाइव कोई भी स्पोर्ट्स में देखते हैं, कोई भी न्यूज चैनल आप 24 आवर्स देखता है वो भी लाइव ऑलमोस्ट देखते हैं। तो ये सारी चीज अगर सैटेलाइट की विजिबिलिटी 15-20 मिनट है तो ये काम नहीं कर सकते। तो ये तो ऐसा हो गया कि आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं और 15 मिनट के लिए मैच देखा, फिर कैप्टन आ जाएगा कि भी अभी अगला बाकी का मैच है हम आपको 1.5 घंटे के बाद दिखाएंगे, क्योंकि सैटेलाइट अभी 1.5 घंटे के बाद वो विजिबिलिटी में आएगा। तो दैट इज नॉट डन, है ना। तो अभी इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम धीरे धीरे उसका एल्टीट्यूड बढ़ाते जाते हैं। तो जैसे हमने पहले बात की थी, एल्टीट्यूड जब आप बढ़ाते हैं तो आपकी विजिबिलिटी बढ़ती जाती है। तो इस तरह से देयर इज वन इक्वेशन दैट एंड इट सेज दैट when you reach a period of altitude of 36,000 किलोमीटर from the surface of earth, पहले हम लो अर्थ ऑर्बिट की बात करते थे तो वहां पे 500 to 1000 किलोमीटर की बात करते थे, वो एल्टीट्यूड था फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अभी यही एल्टीट्यूड हम 36,000 किलोमीटर के ऊपर हम बात करते हैं। तो वहां पे अगर सैटेलाइट अर्थ के आसपास घूमता है तो ऑलमोस्ट आपको एकदम स्टेशनरी दिखेगा। वो स्टेशनरी दिखेगा, उसके भी जो टेक्निकल रीजन है उसकी भी हम बात करते हैं कि देखिए कि वहां पे कोई भी सैटेलाइट किसी भी ऑर्बिट में, लो अर्थ ऑर्बिट हो या तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हो, उसको वहां पे पहुंचाना वो रॉकेट का काम है। लेकिन वहां पे स्टेबल रहना, हाउ डज अ सैटेलाइट स्टेज इन द ऑर्बिट, वो वहां पे रुकना चाहिए। तो उसी के लिए बेस्ड ऑन डिफरेंट ऑर्बिट इज एन टिपिकल एनर्जी विच यू हैव टू इम्पार्ट, आपको एक स्पीड देनी पड़ेगी। अगर वही स्पीड से आपने उसको इंजेक्ट किया, जिसको वेलोसिटी भी बोलते हैं, अगर इतनी वेलोसिटी से अगर आपने उसको इम्पार्ट किया, देन ओनली दैट पर्टिकुलर सैटेलाइट विल कीप ऑन रोटेटिंग इन दैट ऑर्बिट एट दैट एल्टीट्यूड। हाँ, तो लो अर्थ ऑर्बिट की अगर बात करते हैं तो रफली इट इज 8 किलोमीटर पर सेकंड, दैट ट्रांसलेट इनटू रफली 26 to 28,000 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यही चीज हम 36,000 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे जाते हैं, देन द स्पीड रिक्वायर्ड वुड बी 3 किलोमीटर पर सेकंड, क्योंकि हम एल्टीट्यूड हमारा एकदम 36,000 किलोमीटर पे चले गए हैं। तो जब सैटेलाइट इस स्पीड से पृथ्वी के आसपास घूमता है, उसी समय पृथ्वी की अपनी भी स्पीड जो अपनी एक्सिस के ऊपर घूमती है, साइड में आप ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो ग्रीन कलर की जो एक्सिस है उसके आसपास ये जो अर्थ है वो भी उस स्पीड से ईस्टवर्ड मूवमेंट करती है, राइट। तो अर्थ की अपनी स्पीड, मूवमेंट अराउंड इट्स ओन एक्सिस, और सैटेलाइट की जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर घूमने की, जब दोनों स्पीड इक्वल हो जाती है तब हम उसको बोलते हैं जियो सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस मतलब सेम स्पीड। तो हम स्टेशनरी क्यों बोलते हैं कि वो सिंक्रोनस स्पीड तो कहीं पे भी आ सकती है, ठीक है, लेकिन जब वही चीज, वही ऑर्बिट आप इक्वेटर के ऊपर हम जब ले आते हैं देन इट बिकम्स स्टेशनरी, राइट। तो इसी ऑर्बिट के अंदर जब हम सैटेलाइट रखते हैं तो सैटेलाइट की विजिबिलिटी 24 आवर्स हो जाती है इंस्टेड ऑफ 90 मिनट्स, राइट। तो दैट मीन्स अगर वहां पे कोई भी सैटेलाइट रखे, से फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन सैटेलाइट, नाउ इट इज विजिबल टू अस कंटिन्यूअसली फॉर 24 आवर्स विदाउट चेंजिंग योर एंटेना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आपने कभी देखा कि आपने टीवी का डिश का एंटेना बाहर है, हम सैटेलाइट तो घूमता रहता है, हाँ, सैटेलाइट मैंने बताया 3 किलोमीटर पर सेकंड, वो तो ऑर्बिट के अंदर पृथ्वी के आसपास चक्कर लगाता ही रहता है। तो हमने तो कभी अपनी एंटेना को ऐसे घुमाया नहीं है। वो क्यों नहीं घुमाया? क्योंकि वो जिस रेट से सैटेलाइट घूमता है उसी रेट से हमारी पृथ्वी, और इसलिए हम और हमारा घर और हमारा एंटेना भी उसी रेट से घूमता है, उसी डायरेक्शन में, राइट।
So this is how, this is the basic some of the thing how this orbit is very important for us, right? So now let us come to understand how a satellite keeps itself into orbit. That is principle of continuous falling. जब कोई भी रॉकेट की मदद से हम सैटेलाइट को लेके उसके इंटेंडेड ऑर्बिट के अंदर सफिशिएंट टेंजेंशियल वेलोसिटी इम्पार्ट करके उसको इंजेक्ट करते हैं, व्हेन नाउ रॉकेट फंक्शन इज ओवर, अभी कोई रॉकेट नहीं है, रॉकेट ने अपना काम कर दिया है, उसने सैटेलाइट को वहां पे इंजेक्ट कर दिया है, तो उसके उसी क्षण पे वो तीन चीजें होने की प्रोबेबिलिटी है। नंबर वन, तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर हम 36,000 किलोमीटर से पहले, क्योंकि हम पहले ट्रांसफर ऑर्बिट में इंजेक्ट करते हैं, सीधे 36,000 में हम उसको सीधा इंजेक्ट करते हैं, तो दैट इज रफली अराउंड 200 टू 250 किलोमीटर, राइट। लेकिन उस समय आप जो स्पीड इम्पार्ट करते हैं तो वो इनिशियली सर्कुलर बनने के बदले हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में वो पहले चला जाता है। तो दैट इलिप्टिकल ऑर्बिट विथ जो अर्थ के आसपास पहले बनती है, तो दैट इज नोन एज जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, क्योंकि यहां से आपको उसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ट्रांसफर करना है। तो आप जीटीओ में जाते हैं, तो जीटीओ में जैसे आपने इंजेक्ट किया, तो इंजेक्ट करते समय क्योंकि वहां पे 200 टू 250 किलोमीटर, तो वहां पे भी ग्रेविटी तो है, भले जितनी ग्राउंड पे है उतनी नहीं है, बट देयर वुड बी ग्रेविटी, ग्रेविटी वुड नॉट बिकम जीरो, राइट। उसके इक्वेशन की बात अभी बात नहीं करते हैं, लेकिन देयर वुड बी ग्रेविटी। तो इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, एक बात आप समझ लीजिए, द सैटेलाइट इज ए कंटिन्यूअस फॉलिंग ऑब्जेक्ट, हमेशा गिरता ही रहता है, लेकिन उसको गिरने से बचाना है हमें। तो वो बचाने के लिए क्या करना है, क्योंकि ये जो फोर्स है अर्थ की ग्रेविटी का, वो अर्थ की तरफ खींचता रहता है, तो आपको एक दूसरा फॉरवर्ड मूवमेंट देना पड़ेगा, जिसका फोर्स इतना होना चाहिए इतना की ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ की तरफ। अगर ये दोनों फोर्स अगर आप प्रोड्यूस कर सके, राइट, तो देन देयर वुड एक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। तो इंस्टेड वो नीचे जाएगा, लेकिन इट विल नेवर हिट द ग्राउंड। वो नीचे क्यों जाएगा? बिकॉज ऑफ द अर्थ कर्वेचर, अर्थ का जो कर्वेचर है, इसीलिए। और वो कितनी स्पीड चाहिए, वो कहां से आई? 8 किलोमीटर पर सेकंड। कि आप देखिए अर्थ का जो कर्वेचर है, अगर आप 8 किलोमीटर अर्थ के ऊपर स्ट्रेट जाएंगे और वहां पे दूसरा एक कोई वहां पे एक दूसरा पोस्ट रख देंगे और लाइन ऑफ साइट देखेंगे, तो दैट अदर पॉइंट एट डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर वुड गो डाउन 5 मीटर। तो that 5 meter going down at the distance of 8 kilometers is the earth curvature। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को इतनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दे कि वो कर्वेचर को मैच कर जाए। जस्ट आप थोड़ा शांति से सुनिएगा कि अर्थ का जो कर्वेचर है उसको मैच करने के लिए जितनी स्पीड चाहिए उतनी स्पीड से मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, मैं सैटेलाइट वर्ड अभी यूज नहीं करता हूं, मैं बॉल है, पत्थर है, कुछ भी है, अगर आपने उस स्पीड से इंजेक्ट कर दिया, तो वो अगर आपकी अर्थ की जो कर्वेचर है उससे मैच कर गया, तो क्या होगा कि इंस्टेड ऑफ हिटिंग टू द ग्राउंड, राइट, वो कंटिन्यूअस फॉल तो करेगा ही, लेकिन इट विल नेवर हिट टू ग्राउंड एंड इट विल कीप ऑन सर्कलिंग अराउंड। दिस इज सम ऑफ द बेसिक थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। तो अभी हम सैटेलाइट की तरफ आते हैं। कोई भी सैटेलाइट है उसकी जो सब सिस्टम है वो मेनली दो चीजों के अंदर डिवाइड होती है। एक पेलोड सिस्टम बोलते हैं, दूसरे को बस सिस्टम बोलते हैं। तो पेलोड के अंदर एक रिपीटर और एक एंटेना, दो उसके जो प्रमुख कंपोनेंट होते हैं। एंड ऑन द बस साइड, वो हम थोड़ी अभी आगे चर्चा करेंगे बस क्या होता है और पेलोड क्या होता है। तो बस सिस्टम जैसे बोल दीजिए कि हमारा बॉडी है, बॉडी का हमारा जो टोटल ढांचा है, हाँ, बॉडी को जैसे हमारा स्केलेटन है, फिर उसके आसपास आप देखिए तो अंदर ये बोन्स है, बोन्स सबको इकट्ठा जोड़ने के लिए मसल्स है, फिर ब्लड वेसल्स है, राइट। तो सारा फ्लश भी भरा पड़ा है हमारे अंदर, डिफरेंट ऑर्गन्स है। तो ये हमारा बॉडी का जैसे स्ट्रक्चर है, ऐसे सैटेलाइट का भी एक स्ट्रक्चर होता है। और जैसे हमें भी जिंदा रहने के लिए पावर चाहिए, तो सैटेलाइट को भी पावर चाहिए। हमें भी गर्मी ठंडी लगती है तो सैटेलाइट को भी लगती है। हमें भी पावर चाहिए, हमें भी सैटेलाइट को प्रपोर्शन, मतलब उसको ईंधन चाहिए। हम जो खाना खाते हैं इसी से हमें शक्ति मिलती है, तो सैटेलाइट को भी कुछ तो देना पड़ेगा। तो दैट इज, हम जो फ्यूल जनरली हम व्हीकल के अंदर फ्यूल की
करते हैं, और सैटेलाइट के लिए और रॉकेट के लिए हम प्रपल्शन की बात करते हैं। तो प्रपल्शन और फ्यूल में डिफरेंस कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई भी फ्यूल को, तो कोई भी आपका रॉकेट है, जैसे आपने पहले के लेक्चर में सुना होगा कि कोई भी रॉकेट है उसका मेन काम क्या है, उसको थ्रस्ट प्रोड्यूस करना है। थ्रस्ट क्यों प्रोड्यूस करना है? इट हैज टू कैरी वेट टू स्पेस। हाँ, तो पहले तो बिकॉज ऑफ द ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रेविटी एंड बिकॉज ऑफ इट्स ओन वेट, इट इज एकदम ग्राउंड से चिपका हुआ है। हाँ, लॉन्च पैड पे वो खड़ा है रॉकेट, और उसको आपको अगेंस्ट ग्रेविटी उठाना है, तो यू नीड टू इम्पार्ट ए वेरी हाई थ्रस्ट। तो रॉकेट का काम ही है थ्रस्ट प्रोड्यूस करना, राइट। तो ये थ्रस्ट कहाँ से प्रोड्यूस होगा? तो उसके लिए आपको फ्यूल जो है अंदर, आपके अंदर उससे आपने डाला है, फ्यूल को बर्न करना पड़ेगा। और जिस रेट से, जितना ज्यादा और जितनी रेट से आपका फ्यूल की बर्निंग होगी, और आपकी जो नोजल है रॉकेट की, वो नोजल से जितनी मात्रा में, जितने रेट से वो आपका एग्जॉस्ट गैस बाहर निकलेगा, उतनी ही न्यूटन्स थर्ड लॉ, सिंपल चीज, तो उसमें ही आपका रॉकेट दूसरी दिशा में प्रोड्यूस करके प्रोपेल करेगा। तो ये जो फ्यूल का बर्न होना है, वो बर्निंग के लिए उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजर। तो फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर, दैट बिकम्स प्रपल्शन, राइट। तो उसको हम प्रोपेलेंट बोलते हैं। और प्रपल्शन का मतलब ये हमारी प्रोपेलेंट सिस्टम जो पूरी ये रॉकेट में भी है और हमारे सैटेलाइट के अंदर भी होती है। तो उसके बाद एटीट्यूड एंड ऑर्बिट कंट्रोल सिस्टम होती है कि सैटेलाइट को अपनी जगह पे पहुंचाना, उसको ओरिएंट करना और वहां पे रखना, तो उसको हम एओसीएस बोलते हैं। और फिर टेलीमेट्री, ट्रैकिंग एंड कमांड। तो टेलीमेट्री का मतलब है कि यहाँ बैठे बैठे वहां से कुछ मेजर करना है, क्योंकि सैटेलाइट तो 36,000 किलोमीटर दूर है, तो उसकी हेल्थ को अगर हमें मॉनिटर करना है, तो वहां से जो हम टेलीमीटरिंग, मीटरिंग मतलब टू मेजर, टू नो, टेली मीन्स फ्रॉम डिस्टेंस, तो दूर रह के उसको छुए बगैर हमें वहां पे उसके जो सारे डिटेल यहाँ पे अगर हमें चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड टेलीमेट्री। ट्रैकिंग मतलब हमें सैटेलाइट को ट्रैक भी करना है कि आज की इंस्टेंटेनियसली ये ट्रैकिंग 24/7 रहता है। हमारे मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी जो हसन में है, बेंगलोर के पास, वहाँ पे एक बड़ा हमारा एक इसरो का खुद का ऑफिस है, और जितने भी हमारे सैटेलाइट होते हैं उसके अंदर मेजोरिटी जो कम्युनिकेशन के सैटेलाइट है, उसकी मॉनिटरिंग जो है वहाँ पे, ट्रैकिंग वहाँ पे होती है। और कमांड, क्योंकि कभी कभी आपको सपोज सैटेलाइट है कहीं और, जो हमारा इंटेंडेड पोजीशन है वहाँ पे नहीं है, और थोड़ा वहाँ से शिफ्ट हो गया, तो आपको कमांड देके उसको थोड़ा करेक्शन देना पड़ेगा। तो दीज आर दी बेसिकली मेन कंपोनेंट ऑफ एनी स्पेसक्राफ्ट सब सिस्टम। तो इसके अंदर देखिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट एसेंशियली, जैसे इसमें आप देख सकते हैं पेलोड एंड बस। तो पेलोड जो आपने कहीं जो सैटेलाइट की जब आप लेक्चर सुनते हैं या बात करते हैं, तो कुछ वर्ड आपको रिपीटेडली सुनने को मिलते हैं, तो उसके लिए मुझे लगा आज मैं थोड़ा आपको सिंप्लीफाइड वे में, बहुत शॉर्ट में हम बात करते हैं। तो पेलोड कंसिस्ट ऑफ ए रिपीटर एंड एंटेना सिस्टम। आपने रिपीटर वर्ड भी सुना होगा, एंटेना भी सुना होगा। तो ये रिपीटर है क्या? इट परफॉर्म्स प्रोसेसिंग टू द रिसीव्ड सिग्नल, उसका काम यही है। एंटेना सिस्टम इज यूज्ड टू रिसीव सिग्नल फ्रॉम एंड ट्रांसमिट सिग्नल टू द ग्राउंड स्टेशन इन द कवरेज एरिया, जो हमने पहले बताया था। अब एओसीएस की बात है, जो मैं बता रहा था, एटीट्यूड एंड ऑर्बिट कंट्रोल सिस्टम, उसका काम है टू स्टेबलाइज द स्पेसक्राफ्ट एंड कंट्रोल इट्स ऑर्बिट। ऑर्बिट को कंट्रोल करना और उसको स्टेबलाइजेशन देना, वो एओसीएस जो सिस्टम है उसका काम है। और प्रपल्शन सिस्टम, जिसकी हमने ऑलरेडी बात की, टू प्रोवाइड द नेसेसरी वेलोसिटी इंक्रीमेंट। आपको वेलोसिटी तो चाहिए, बट वेलोसिटी को आपको बढ़ाना भी पड़ता है ना, तो वेलोसिटी इंक्रीमेंट के लिए आपको प्रपल्शन सिस्टम, मतलब फ्यूल की और ऑक्सीडाइजर की जो हम अभी बात कर रहे थे। और टॉर्क टू दी एओसीएस, तो एओसीएस को भी काम करने के लिए प्रपल्शन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसको जो थ्रस्ट मोमेंटरी चाहिए करेक्शन के लिए, वो आएगा कहाँ? बाय बर्निंग फ्यूल। तो उसके लिए प्रपल्शन सिस्टम। फिर थर्मल कंट्रोल सिस्टम, हमने पहले भी बात की थी, जैसे हमें ठंडी और गर्मी लगती है, तो सैटेलाइट के अंदर भी ठंड और गर्मी की महसूस होती है, तो उसका थर्मल कंट्रोल है, वो भी करना पड़ता है। दैट इज टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ वेरियस सबसिस्टम विद इन इट्स टॉलरेबल लिमिट। क्योंकि हर एक का जब आप डिजाइन करते हैं, तो ग्राउंड पे भी हम उसकी ऐसी डिजाइन करते हैं, ऐसा नहीं कि हम रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री पे ही काम करेगा, राइट। तो हम नॉर्मल भी, हमारे ग्राउंड के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि रिपेयरेबल है, उसके लिए भी हम देखते हैं कि ठंडी में भी काम करता है और बहुत गर्मी में भी काम करता है।
तो हम तो ये सिस्टम की बात करते हैं जिसके लिए रिपेयर पॉसिबल नहीं है। तो आपको तो एक्सट्रीम टेम्परेचर जो कि स्पेस एनवायरनमेंट में आपको आने की संभावना है, उस सिस्टम उस एनवायरनमेंट के लिए आपको टेस्ट करना है, राइट। तो थर्मल सिस्टम कंट्रोल सिस्टम आपको ऐसे ही बनानी चाहिए कि आपकी जो सब सिस्टम है वो -10 से लेके, क्योंकि सैटेलाइट के अंदर ये रहेगी सब सिस्टम, बाहर की तरफ नहीं, दोनों के टेम्परेचर की रेंज अलग होती है। कुछ सब सिस्टम जैसे एंटेना है वो सैटेलाइट के बाहर की तरफ होती है, उसकी टेम्परेचर की लिमिट बहुत ज्यादा होती है, टॉलरेंस की लिमिट। और कुछ कंपोनेंट और सब सिस्टम ऐसे जो सैटेलाइट के अंदर के एंक्लोजर में है, उसके लिमिट जनरली, राइट, ऑपरेटिंग 0 to 40 के आसपास हम रखते हैं। और जब उसको टेस्ट करना है तो दोनों तरफ 10 से 15 डिग्री ज्यादा करते हैं, तो -10 to 15 तक जाते हैं, और प्लस में +50 to 60 डिग्री तक टेस्ट करते हैं। क्योंकि आप दोनों तरफ अगर मार्जिन रखते हैं तो कभी भी बाई चांस कोई टेम्परेचर थोड़ा इधर उधर हुआ तो आपकी सबसिस्टम जो है वो फेल ना हो। टेलीमेट्री टेकिंग की बात करिए, और इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम जिसके लिए सोलर पैनल लगे हुए होते हैं, राइट। तो रिक्वायर्ड डीसी पावर, क्योंकि सैटेलाइट को जो पावर चाहिए वो आता तो है सन से। तो सन की पावर जो ये आपके इससे जो बनती है, तो वो ये पावर सिस्टम वो रो पावर है। तो रो पावर 26 to 42 वोल्ट में वेरी करती है। तो ये से कोई भी पर्टिकुलर सब सिस्टम है इतनी ज्यादा रेंज में काम वोल्टेज में काम नहीं करेगा। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक पावर कंडीशनर जैसी एक सिस्टम लगाते हैं पावर सप्लाई को, जो आपको रिक्वायर्ड पावर के आपको जो वोल्टेज और करंट चाहिए उसमें कन्वर्ट करके आपकी हर एक इंडिविजुअल सब सिस्टम को वो प्रोवाइड करता है। अब सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी है, बहुत ज्यादा इसमें टाइम नहीं करेंगे। तो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी रेंज जो कि कमर्शियल सैटेलाइट में यूज होती है, एल बैंड जो होता है 1 to 2 गीगाहर्ट्ज, जनरली मोबाइल सैटेलाइट सर्विस में यूज होती है। फिर एस बैंड, सी बैंड, ऐसे आप देख सकते हैं, मैंने कुछ नंबर्स भी लिखे हैं, दैट इज इन गीगाहर्ट्ज, राइट। तो जैसे हम ऑडियो हम बात करते हैं वो ऑडियो फ्रीक्वेंसी है, हम जो पिक्चर देखते हैं दैट इज वीडियो फ्रीक्वेंसी, राइट। तो ऐसे ऐसे जब सैटेलाइट कम्युनिकेशन में हम बात करते हैं तो जनरली वो माइक्रोवेव रीजन में होता है। तो माइक्रोवेव रीजन की ये जो सारी फ्रीक्वेंसी है, और उसके भी अलग रीजन है, बियॉन्ड इट इज बियॉन्ड स्कोप ऑफ टुडेज लेक्चर, तो वो हम बाद में कभी मौका मिला तो बात करें। तो दीज आर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, एल बैंड टू सी, एक्स, के यू एंड का बैंड। आज की तारीख में मेजोरिटी कम्युनिकेशन सैटेलाइट, क्योंकि इसरो की बात करते हैं तो हम सी और एक्सटेंडेड सी बैंड भी अभी थोड़े हमने वी हैव कंटिन्यूड यूजिंग दिस फ्रीक्वेंसी बैंड। अदरवाइज मेजोरिटी केयू बैंड जो 11.7 to 14.5 गीगाहर्ट्ज वाला बैंड है उसमें, और का बैंड में हम काम करते हैं। अब कोई भी कम्युनिकेशन एक सैटेलाइट लिया तो उसके अंदर क्या क्या होता है, तो उसके लिए आप देखिए अपलिंक सिग्नल, आप लेफ्ट साइड में नीचे देखिए एंटेना है, यहाँ से ऊपर सिग्नल गया, इसको मैंने अपलिंक बोला। सिग्नल है उसका एक बैंडविड्थ होता है, क्योंकि ये मैं कोई एक सिग्नल नहीं भेजूंगा, बंच ऑफ सिग्नल पूरा एक बैंड भेजूंगा, उसकी बैंडविड्थ कितनी होती है 500 मेगाहर्ट्ज। कहां से आई, तो मैंने ये लिखा है कि 5.9 to 6.4 गीगाहर्ट्ज। ये एक सी बैंड जो आगे हमने बात की थी, एक सी बैंड ट्रांसपोंडर का एग्जांपल मैंने लिया है। तो 5.9 to 6.4 आप देखेंगे तो 500 मेगाहर्ट्ज होता है ये टोटल। तो ये 500 मेगाहर्ट्ज का जो बैंड है ये मैं पूरा इस एंटेना से यहाँ से अपलिंक करता हूँ। तो अपलिंक ये अभी सैटेलाइट के अंदर उसकी रिसीव एंटेना में जाके इनपुट में एक फिल्टर होता है, फिर ये एम्पलीफायर आया, ये मिक्सर, ये सभी सब सिस्टम के नाम है, उसमें हम बहुत ज्यादा ड्वेल नहीं करेंगे। अब मेन चीज यहीं पे आती है कि 500 मेगाहर्ट्ज का जो इतना बड़ा बैंड है, तो ये इनपुट मल्टीप्लेक्सर यहाँ पर जो है उसका काम यह है कि 500 मेगाहर्ट्ज को 40 मेगाहर्ट्ज की 12 चैनल के अंदर वो डिवाइड कर देता है। वो रीजन क्या है इसका, क्योंकि 500 मेगाहर्ट्ज की बड़ी चीज, ये वो हमने बचपन में जो कहानी सुनी थी इस चीज का है कि वो बूढ़ा बाप जो है वो बच्चों को साथ में रहने के लिए एक बोलता है कि एक काम करो, ये इतनी बड़ी स्टिक का मैं एक आपको एक बड़ा बंडल देता हूं, इसको आप तोड़ दो। तो ये बंडल ऑफ स्टिक इज वेरी डिफिकल्ट टू कैच, लेकिन उसको बोला था आप छोड़ दो, एक इंडिविजुअल स्टिक एक एक जन ले लो और आप देखो उसको आप तोड़ सकते हो कि नहीं। तो वो इजीली उन्होंने ब्रेक कर दिया, बिकॉज इट वाज इंडिविजुअल, इट बिकेम वीकर, राइट। तो आप इतना बड़ा 500 मेगाहर्ट्ज का बैंड को साइमल्टेनियसली उसके सारे पैरामीटर को ऑप्टिमाइज करना पॉसिबल नहीं है, राइट। तो आप इंडिविजुअल चैनल में, क्योंकि अभी आपको काम करना है सिर्फ 40 मेगाहर्ट्ज के ऊपर, राइट। तो ये 40 मेगाहर्ट्ज इजीली हो सकता है, क्योंकि जो भी आपकी एक्टिव डिवाइसेस होती है
सब सिस्टम के अंदर दे आर बैंड लिमिटेड। वो 500 मेगाहर्ट्ज जितनी वाइड बैंड परफॉर्मेंस नहीं देती है, 40 मेगाहर्ट्ज में वो अच्छे से काम देगी, इसलिए हम उसको चैनलाइजेशन करते हैं। तो हर एक इंडिविजुअल चैनल के अंदर फिर हम उसको एम्पलीफाई करते हैं, और आउटपुट में मतलब जब सैटेलाइट की आउटपुट में वो जाती है फिर हम उसको इकट्ठा कर देते हैं, क्योंकि एंटेना के अंदर के हम 12-12 एंटेना तो लगा नहीं सकते, एक ही एंटेना से हमें 500 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल को आगे ट्रैवल कराना है। तो ये फिर कंबाइन कर देते हैं, कंबाइन करने के बाद ट्रांसमिटिंग एंटेना से, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन भी करते हैं, जो यहाँ पे आप देखिए ये इनपुट में मिक्सर जो है यहाँ पे 2.2 गीगाहर्ट्ज का एक लोकल ऑसिलेटर लगा है, दैट कन्वर्ट्स 6 गीगाहर्ट्ज इनटू 4 गीगाहर्ट्ज हियर। तो ये जो डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आई है 3.7 टू 4.2, दैट अगेन मेक्स 500 मेगाहर्ट्ज। तो ये पूरा डाउनलिंक हमारा सैटेलाइट से नीचे अर्थ की तरफ आता है। तो ये पेलोड की सब सिस्टम, इसमें आप देखिए फ्रंट एंड के अंदर हमेशा रिसीव, ये एंटेना है, उसके बाद फ्रंट एंड में रिसीवर आ गया। उसका काम क्या है, उसका गेन फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन, जो मैंने 6 टू 4 गीगाहर्ट्ज की बात की थी, ये होता है। फिर नॉइस फिगर, मतलब ये नॉइस फिगर चीज क्या है कि कोई भी जब आप यहाँ से सिग्नल वहां तक जाता है तो उसके साथ नॉइज भी जाता है। वो नॉइज कई प्रकार के होते हैं। तो नॉइज नॉइज की तकलीफ क्या है कि वो सिग्नल के साथ जाता है और इतना नॉइज होता है। सपोज मैं अभी आपसे बात करता हूं, इसके साथ कई बच्चों ने अगर अपना माइक्रोफोन ऑन करके थोड़ा थोड़ा आपस में बात शुरू कर दिया तो इतना नॉइज बढ़ जाएगा कि मेरा जो मेन सिग्नल है, मैं जो बात कर रहा हूं, वो हम ठीक से सुन नहीं पाएंगे। तो वो नॉइज जो है वो मिनिमम होना चाहिए। तो उसके लिए एलएनए, जिसको हम बोलते हैं लो नॉइज एम्पलीफायर, उसका काम ये है कि वो सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, लेकिन एम्पलीफिकेशन की प्रोसेस से अपना खुद का नॉइज कम से कम रखेगा। तो दैट इज कॉल्ड लो नॉइज एम्पलीफायर। और ये बहुत वाइड बैंड भी होता है। उसके बाद अपलिंक कनेक्टिविटी, फिर ये चैनलाइजेशन की बात आई, तो यहाँ देखिए लिखा है चैनलाइजेशन, बैंडविड्थ एंड बैंड सेपरेशन। उसके बाद हाई पावर एम्पलीफायर, ये देखिए 1 2 3 4 ऐसे सॉरी, ऐसे 12, सपोज 12 चैनल में डिवाइड किया तो ये 12 होंगे इंडिविजुअल, और सभी 12 को यहाँ पे हम फिर को कंबाइन कर देंगे, राइट, दैट इज रिकॉम्बिनेशन। यहाँ आप देखिए नीचे लिखा है लो लॉस, क्योंकि लॉस भी कम होना चाहिए। लो लॉस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये अभी हाई पावर है, पहले लो पावर था, अभी एम्पलीफायर के बाद हाई पावर है। तो हाई पावर में थोड़ा सा भी 0.1 dB एक टर्म है, एक मेजरमेंट का यूनिट, 0.1 टू 0.1 dB का भी पावर आपको लॉस हो गया, इट विल रिजल्ट इनटू ए वेरी वीक सिग्नल। तो आपको लो लॉस चीजें बनानी चाहिए, और उसकी बैंडविड्थ भी आपको जितनी चाहिए उतनी रखनी चाहिए। वापस फिर वो ट्रांसमिटिंग एंटेना से यू अगेन सेंड इट बैक टू अर्थ। तो ये ट्रांसपोंडर के लिए व्हाट इज, इट इज नथिंग बट ए ब्रेन ऑफ ए सैटेलाइट। ट्रांसपोंडर का फंक्शन क्या है, इट रिसीव्स द सिग्नल, अभी हमने इसके बारे में भी बात कर ली। ट्रांसपोंडर फंक्शन ये भी हो गया। तो ये रिसीवर जो मैंने पहले बताया कि फ्रंट एंड के अंदर, उसके कुछ फोटो मैंने यहाँ पे दिखाया है कि किस टाइप का ये होता है, राइट। अलग अलग ये रिसीवर है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए जब हमने बनाए थे। और ये है एक हाई पावर एम्पलीफायर। तो ये जो एम्पलीफायर है इसका काम ही यही है कि जो वीक सिग्नल उसके इनपुट के अंदर आया था, यहाँ पे देखिए इसके, ये ड्राइवर एम्पलीफायर है जो कि ड्राइव देता है so that your signal is reaches to a certain level so that it is detected by this power amplifier। और ये एम्पलीफाई करके सिग्नल को जो आउटपुट में कंबाइन करना है वो ओमक्स की तरफ उसको देता है। उसका की स्पेसिफिकेशन में देखिए, उसका आउटपुट पावर से हमें हमें देखना है कितना पावर देता है, और वो लीनियर होना चाहिए, क्योंकि वो उसका मेजर ऑफ डिस्टॉर्शंस इंट्रोड्यूस, वो कोई भी चीज एम्पलीफायर है वो हमेशा एक नॉन लीनियर डिवाइस होती है। तो नॉन लीनियर का मतलब क्या है, कोई एम्पलीफिकेशन में उसकी लिनियरिटी, वो सीधा साधा आदमी को वो गड़बड़ वाला आदमी बना सकता है। हाँ, एम्पलीफाई तो करेगा, जब पावर आती है तो कई चीजें भी आती है ना साथ में एक आदमी के पास, तो उसी तरह अनवांटेड चीजें भी आ जाती है। तो ये चीजें है कि डिस्टॉर, हम उसको टेक्निकल भाषा में डिस्टॉर्शन बोलेंगे। तो ये जो डिस्टॉर्शन की हमने ये बात की थी, तो ये डिस्टॉर्शन जो इंट्रोड्यूस होता है दैट इज दी नॉन लिनियरिटी, और उसकी एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए, राइट। तो ये हमारे कुछ हाई पावर एम्पलीफायर के फोटोग्राफ है। यहाँ पे ये जो है एक सॉलिड स्टेट पावर एम्पलीफायर है। जब आपको रिलेटिवली कम पावर की जरूरत होती है तो सॉलिड स्टेट डिवाइस यूज करके आप ये हाई पावर एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं। और जब आपको 100 वॉट से ज्यादा पावर चाहिए, हाँ, तब आप
ट्रैवलिंग वेव ट्यूब एम्पलीफायर यूज करते हैं। ये उसके कुछ फोटोग्राफ है। और उसको पावर देने के लिए जो मैं ईपीसी की बात कर रहे थे हम कि रो पावर जो 26 टू 42 वोल्ट रो बस है, उसको कंडीशंस करके आपको एकदम नेरो रेंज में फिल्टर्ड आपके जो पावर चाहिए सब सिस्टम को, हाँ, वो देने का काम इलेक्ट्रॉनिक पावर कंडीशनर करती है। और अभी ये सारी चीजें, हाँ, तो एक इंडिविजुअल सब सिस्टम जो है, अभी आप देखिए इसके अंदर मैंने लेफ्ट साइड एंटेना से शुरू करके यहाँ से ट्रांसमिटिंग सेक्शन के जितने भी सैंपल, ये कुछ जो सब सिस्टम हम डिजाइन करते हैं, बनाते हैं एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए, ये सारे के फोटोग्राफ आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में आप शुरू करके देखिए, यहाँ से ये एंटेना है, एंटेना के बाद फ्रंट एंड, यहाँ रिसीवर जो हमने पहले देखा था, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो चैनलाइजेशन के लिए मैंने 500 मेगाहर्ट्ज को 12 चैनल में डिवाइड करने की बात की थी, इसका ये फोटोग्राफ है, राइट। तो इस तरह से ये सब मिल के बाद में जो चैनलाइजेशन किया, तो उसके बाद ड्राइवर एम्पलीफायर आता है। तो दिस इज दो ड्राइवर एम्पलीफायर। ड्राइवर एम्पलीफायर के बाद ये या तो सॉलिड स्टेट पावर एम्पलीफायर है, या तो ये आपका TWT एम्पलीफायर है। ये सारी चीजें इसके आउटपुट के अंदर, मतलब ये जो पावर ये आपने यहाँ पे आउटपुट में लिया, उसको फिर आपको कंबाइन करना है ट्रांसमिटिंग सेक्शन में, और उसके अंदर फिल्टरिंग करके मल्टीप्लेक्सिंग करके ये सारी चीजें, ये सारे कंपोनेंट हम डिजाइन करके ये इंडिविजुअली उसको टेस्ट करते हैं, क्योंकि इंडिविजुअली टेस्ट करना बहुत जरूरी है, तभी ये चीजें रिलायबल बनती है। तो रिलायबल बनाने के कई तरीके हैं, उसमें से एक है उसकी विगरस टेस्टिंग। The more and more you test any subsystem, more and more it becomes reliable. ठीक है, तो आप कंपोनेंट भी रिलायबल, एक स्पेस ग्रेड के कंपोनेंट आप सिलेक्ट करते हैं, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं, उसके अंदर क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल, इसके ऊपर जो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है उसको आप इंस्पेक्शन में लगाते हैं। फिर उसको जब बन जाती है तो उसकी आप ही परफॉर्मेंस वेरिफिकेशन करते हैं। वो करने के बाद आप खुद, सपोज मैं डिजाइन करता हूं तो मैं खुद परफॉर्मेंस वेरिफिकेशन करता हूं कि उसको जो इंटेंडेड परफॉर्मेंस चाहिए मैं अचीव कर पाया हूं या नहीं। उसके बाद मैं उसको क्लाइमेटिक, जो उसको टेम्परेचर फेस करना है, उस टेम्परेचर के लिए टेस्ट करता हूं। तो ये सारी चीज करने के बाद मैं अपनी एक न्यूट्रल एजेंसी है क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी एश्योरेंस, उनको मैं ऑफर करता हूं। मैं एक सिस्टम की बात बता रहा हूं अभी, और कोई भी स्टैंडर्ड वर्ड में कहीं में भी जनरली यही होता है कि ये सब सिस्टम जो डिजाइनर बनाता है अपने आप टेस्ट करने के बाद इंडिपेंडेंट ये क्वालिटी जो की एक ग्रुप रहती है उनको ऑफर करता है उसको टेस्ट एंड इवेल्यूएशन के लिए। तो वो इंडिपेंडेंट एजेंसी, उसके पास भी स्पेसिफिकेशन और जो सारी चीजें इवेल्यूएट करने के लिए जो उनके है, उसके हिसाब से वो थर्ड पार्टी न्यूट्रल एजेंसी उसको इवेल्यूएट करती है। देन दे गिव अ सर्टिफिकेट, यस इट इज फ्लाइट वर्दी, मतलब ये फ्लाइट के लिए वर्दी है और आगे के प्रोसेस के लिए इसको हम भेज सकते हैं। देन व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस? ये तो इंडिविजुअल सब सिस्टम है, तो सैटेलाइट में कैसे जाएगी? तो दीज थिंग्स आर देन माउंटेड ऑन टू ए इंडिविजुअल पैनल। कोई भी आप सैटेलाइट, आप देखिए क्यूबिकल होता है, क्यूब की 6 साइड होती है, 6 में से मेजर 4 साइड तो हम पैनल 6 की पैनल ही होती है, बट मेजर जो 4 है, नॉर्थ साउथ, ईवी मतलब अर्थ व्यू, और ये एंटी ईवी मतलब एंटी अर्थ व्यू। तो ये जो 4 पैनल है उसके अंदर की तरफ ये हमारे सारे जो पेलोड के सब सिस्टम है उसको हम इंटीग्रेट करते हैं। तो ये पहले जो आपने इंडिविजुअल पिक्चर देखे, से फॉर एग्जांपल मैंने TWTA दिखाया था, तो ये सारी, ये आप जो साउथ पैनल सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में पिक्चर है, ये सारी TWTA को हमने इंटीग्रेट करके इस पैनल के ऊपर रख दिया है। ये 12, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 इधर है, 6, ये 12 की 12 यहाँ पे TWTA। तो उसके रिलेटेड सारी कई सब सिस्टम आर ऑल माउंटेड ऑन ए डिफरेंट पैनल। तो ये पैनल का जो लेआउट है दैट आल्सो इज डिजाइन बेस्ड ऑन व्हाट आर द नियर नेबरिंग सब सिस्टम। वो आपका इनपुट कहाँ से आता है, उसका आउटपुट कहाँ से जाएगा, आपके केबलिंग कहाँ से होगी, राइट, और उसका लोकेशन कहाँ होगा। तो उसके हिसाब से एक स्पेशल ग्रुप होता है जिसको हम AIT बोलते हैं, तो असेंबली एंड इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग। तो AIT की एक पूरी टीम होती है जो असेंबली भी करती है,
सैटेलाइट को इंटीग्रेट भी करती है और उसकी टेस्टिंग भी करती है। तो हमारा काम जो है डिजाइनर का जो है वो एक सब सिस्टम लेवल पे खत्म हो जाता है। देन इट टेकन ओवर बाय ये डिफरेंट एजेंसी, दैट इज एआईटी। एआईटी के ये सारे जो पैनल है, बड़ा बड़ा आपको दिखता है, ये नथिंग बट पैनल। पैनल को आपको देखना है तो राइट साइड में टॉप में देखिए, ये आपको थोड़ा क्लियर दिखेगा, ये बड़ी पैनल है। लेफ्ट साइड में इट इज फुल्ली पॉपुलेटेड पैनल, और उसके नीचे देखिए दूसरे सारे जो रिसीवर और बाकी जो कुछ अलग, हमने इसके पहले वाली स्लाइड में जो भी सब सिस्टम देखे, दे आर ऑल इंटीग्रेटेड ऑन दिस पर्टिकुलर पैनल। तो ये चारों पैनल अभी पॉपुलेटेड हो गई है, और इसकी पैनल लेवल पे अलग से टेस्टिंग होती है, क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस तो है, लेकिन नाउ मुझे एक टीम के, मैं एक अच्छा बैट्समैन हूँ, एक बॉलर है, एक विकेट कीपर है, इंडिविजुअली वो बहुत अच्छा करता है, लेकिन जब मैच आता है तो सबको इकट्ठा करके खेलना है। सिर्फ बॉलर अच्छी बॉलिंग करेगा तो काम नहीं बनेगा, यू शुड हैव अ गुड विकेट कीपर, फील्डर। सो लाइक दैट, इन दैट गिवन एनवायरमेंट, harmoniously, whether all the subsystem are working to the expectation or not। तो ये सब जब आप इंटीग्रेट करेंगे, यू विल फाइंड देयर मेनी सरप्राइजेस। तो ये पैनल लेवल पे सारे सब सिस्टम को इंटीग्रेट करके वी नीड टू टेस्ट द ऑल द सब सिस्टम एट पैनल लेवल। तो ये पैनल लेवल की सारी टेस्टिंग होने के बाद it goes through, तो हम बोलते हैं कि ये पैनल, ऑल पैनल्स आर इंडिविजुअली टेस्टेड एंड फाउंड टू बी ओके। अब इसको हम मेन सैटेलाइट के लिए इंटीग्रेशन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद का काम है, तो सब सिस्टम डिजाइन का पूरा पेलोड डिजाइन करके हम ये पैनल पे इंटीग्रेट करके ये सारी पैनल तैयार करके उसको इंडिविजुअल कंटेनर में डाल के बाय रोड फ्रॉम अहमदाबाद इट इज कैरीड टू बेंगलोर। जो हमारा यूआरएससी सेंटर है, वहां पे हमारे मेन सैटेलाइट के बाकी के बस सिस्टम और बाकी के अपेंडेजेस वहां पे बनते हैं। तो हमारा पेलोड का जो सिस्टम है, हार्ट ऑफ ए सैटेलाइट, वो यहाँ से अहमदाबाद से बन के बाय रोड वहां पे जाता है। तो वहां जाने के बाद क्या होगा, लेट अस गो टू नेक्स्ट स्लाइड। देन इट इज इंटीग्रेटेड पैनल ऑन ए ट्राई पैनल फिक्सचर। तो ये एक सैटेलाइट का जो फिक्सचर है, जो स्ट्रक्चर है बेसिक, उसके अंदर हमने देखिए तो ये उसकी 6 साइड होती है कोई भी एक क्यूब की। तो ये सामने वाला जो जहां पे हमने ये फोटोग्राफ लिया है, ये अभी निकाल दिया है, तो यू आर एबल टू सी 5 फेसेस, राइट। तो ये पांचों आप दिख रहे हैं। तो ये पॉपुलेटेड पैनल जो अलग देख रही थी, अब आप देखिए इट इज नाउ इंटीग्रेटेड लाइक दिस। एक ये रहा, ये दूसरा, राइट। तो ये सारे पैनल ऊपर और नीचे सब जगह पे देखिए, तो दिस ये पिक्चर के अंदर इसको हम ट्राई पैनल बोलते हैं। तो ये इंडिविजुअल पैनल टेस्ट हो गई है, लेकिन ये क्लोज्ड एनवायरनमेंट में वेदर, क्योंकि होगा क्या कि आप यहाँ पे ये देखिए, इसका जो डिस्टेंस है, कोई भी स्पेसक्राफ्ट, कोई भी सैटेलाइट का जो स्ट्रक्चर है, वो सबसे फॉर एग्जांपल 3 से 3.5 मीटर है। तो दैट मीन्स अराउंड 9 to 10 फीट, राइट। ठीक है, तो 9 to 10 फीट की प्रॉक्सिमिटी में आपके हाई पावर के इंस्ट्रूमेंट भी है और एक सेंसिटिव लो पावर के जो फ्रंट एंड के इंस्ट्रूमेंट भी है। तो जब आप इसको ऑन करते हैं क्लोज्ड एनवायरनमेंट के अंदर, तो होता क्या है कि हाई पावर के जो इंस्ट्रूमेंट है वहां से रेडिएशन होता है, पावर कुछ लीक भी होता है, कुछ रेडिएट करता है, वो पिकअप करता है आपके लो पावर और फ्रंट एंड वाले से। तो उससे काफी प्रॉब्लम होती है, अनवांटेड स्पूरियस जो बोलते हैं वो भी जनरेट होती है। तो इसके लिए ट्राई पैनल फिक्सचर देके हम उसको पूरे सैटेलाइट की पैनल को एनर्जाइज करके इस कंडीशन में भी उसको फिर से टेस्ट करते हैं। दिस इज सीरीज ऑफ टेस्टिंग विच इज बीइंग डन। तो ये ट्राई पैनल हो गया। इसके बाद क्या होगा, नाउ योर सैटेलाइट इज रेडी, राइट। तो ये हमारे बेंगलोर का जो सेंटर है, वहां पे पूरा सैटेलाइट हमने इंटीग्रेट करके, अभी आप देखिए, पहले जो आपने स्लाइड में यहाँ पे ये देखा था, ये आप जो देख रहे हैं, ये रो फॉर्म में अभी सैटेलाइट अभी रेडी है, लेकिन उसके अंदर अपेंडेज नहीं है, बाकी न तो एंटेना दिख रहा है, ना सोलर पैनल दिख रही है। इसके बीच के अंदर, बीच के भाग में अगर आप आगे देखेंगे तो वहां पे उसकी फ्यूल टैंक भी आएगी। तो ये सारे अपेंडेज अभी लगने बाकी है, क्योंकि ये सिर्फ पैनल लेवल की इंटीग्रेशन हुई है। तो नेक्स्ट जब ये सारे अपेंडेजेस लगने के बाद आप देखेंगे, दिस बिकम्स द फाइनल शेप and structure of a satellite which is ready to fly. It is in a stowed condition. Stowed मतलब ये जो एंटेना लेफ्ट साइड में बड़ा ये जो आपको दिख रहा है,
हाँ, ड्यूअल ग्रेडेड रिफ्लेक्टर, ये जो एंटेना है ये फोल्ड करके ये इसको बंद किया है, ये बाद में जाके ये खुलने वाला है, राइट, इट गेट्स डिप्लॉयड। तो डिप्लॉयड हम आगे देखेंगे। ये इसकी दूसरी एंटेना है, और ऊपर आप देखिए यहाँ पे आपको एक काला काला एक थिक लाइन दिखती है, सिमिलरली आपको नीचे भी दिख रही है। दीज आर सोलर पैनल्स विच आर फोल्डेड। तो सोलर पैनल भी फोल्डेड है दोनों तरफ सैटेलाइट के, और एंटेना एक यहाँ पे है और एक दूसरी तरफ भी होगी उसकी ऑपोजिट साइड। ये एंटेना अभी फोल्डेड कंडीशन में है, राइट। अभी आप अभी we have elapsed 1 hour. I will run a little faster. आप देखिए यहाँ पे ये सैटेलाइट का डिसअसेंबल्ड व्यू है, तो ये मैं दिखा रहा था। आप देखिए बीच के अंदर सैटेलाइट की बात करते हैं तो यहाँ पे ये फ्यूल टैंक है, उसके ये जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये दोनों आप देखिए फ्यूल टैंक है और एक ऑक्सीडाइजर की टैंक है। ये उसके ऊपर ये हमारा पैनल बैठता है, ब्लू कलर की है। दीज आर योर सोलर पैनल्स ऑन बोथ साइड। और ये एंटेना जो मैं आपको बात कर रहा था, दोनों तरफ एक एक एंटेना होती है, और यहाँ पे उसको लैम्प लिक्विड एपोजी मोटर सबसे नीचे वाले हिस्से में होती है। तो ये सारी चीजें इंटीग्रेट होके हमारे जो पेलोड है वो अंदर की तरफ है, और अपेंडेज ये सब बाहर की तरफ है। तो अभी ये सैटेलाइट जो है वो पूरा बंद होके, अब जब ये टेस्ट करेंगे, अभी हमें उसको भेजना कहाँ पे, स्पेस में। तो स्पेस में क्या है, देखिए डीप वैक्यूम है, बहुत कम ग्रेविटी है, एक्सट्रीम टेम्परेचर है, और एकदम हैजार्डस रेडिएशन है, चार्ज पार्टिकल है। तो इस एनवायरनमेंट में हमें भेजना है, तो वी नीड टू टेस्ट इट। हाँ, तो टेस्ट, और हमें उसको रिलायबल बनाना है। तो हम वहां पे फेलियर को एफोर्ड कर ही नहीं सकते, क्योंकि रिपेयरेबल है ही नहीं। तो जो भी करना है हमें ग्राउंड पे ही एकदम एश्योर करके बनाना है। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए देयर आर सर्टेन टेक्निक्स। वन इज प्रोवाइडिंग रिडंडेंसी, जो आपकी क्रिटिकल और मेन चीजें हैं आपके पाथ के अंदर, वो उसके अंदर एक की जगह हम एक पैरेलल में दो रखते हैं, दैट इज कॉल्ड रिडंडेंसी। एक की जगह पे हम एक एक्स्ट्रा लगाते हैं, वहां पे एक स्विच भी लगाते हैं। तो स्विच से आप पाथ का सिलेक्शन करते हैं कि आपका मेन पाथ में से सिग्नल गया है, लेकिन अगर वो मेन पाथ के इंस्ट्रूमेंट में फेलियर आया तो आप स्विच ओवर करके रिडंडेंट दूसरा जो आपने इंस्ट्रूमेंट रखा है उसके थ्रू, या दूसरी सिस्टम के जो आइडेंटिकल है, राइट, वो जनरली ऑन नहीं रहती है। तो वो रिडंडेंसी भी दो टाइप की होती है, हॉट एंड कोल्ड। तो कोल्ड मतलब दूसरी ऑफ रहती है, जब जरूरत पड़े तब उसको ऑन करते हैं। तो फिर उसकी हम रिलायबिलिटी एनालिसिस भी करते हैं, और विगरस इलेक्ट्रिकल एंड एनवायरमेंटल टेस्टिंग एट सब सिस्टम एंड स्पेसक्राफ्ट लेवल, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है रिलायबिलिटी का। सैटेलाइट अंडर ये एनवायरमेंटल टेस्टिंग, ये डायनेमिक टेस्ट का लेफ्ट साइड में ऊपर जो है ये एक सैंपल सैटेलाइट है, वो डायनेमिक वाइब्रेशन जो टेस्टिंग की वाइब्रेशन की फिक्स टेबल है, उसके ऊपर ये पूरा सैटेलाइट आप देखिए यहाँ पे लगाया है, और ये वाइब्रेशन टेस्ट हो रहा है इसका। और यहाँ पे ये क्लाइमेटिक चेप जो थर्मो वैक्यूम, क्योंकि वहां पे वैक्यूम भी है, और आपको जो थर्मल जो टेम्परेचर की रेंज है वो भी आपको उसमें टेस्ट करना है सैटेलाइट को। तो ये पूरी चैम्बर में, ये देखिए ये सैटेलाइट जो है, ये सैटेलाइट ये पूरा ये बड़ी चैम्बर के अंदर चला जाएगा। ये उसका फ्रंट लीड है, उसको हम क्लोज कर देंगे। पहले उसमें वैक्यूम क्रिएट करेंगे। कितना करेंगे, जितना कि आपको फंक्शनल वैक्यूम वहां पे स्पेस में मिलता है, उतना 10⁻⁻⁶ के आसपास चैम्बर के अंदर वैक्यूम क्रिएट करते हैं, और फिर टेम्परेचर का एक्सकर्शन देते हैं। जैसे सपोज हमें उसको -10 टू +50 टेस्ट करना है, तो पहले धीरे धीरे एम्बियंट से -10 की तरफ ले जाएंगे, -10 के ऊपर 24 घंटा रखेंगे, फिर परफॉर्मेंस मेजर करेंगे, फिर उसको धीरे धीरे ट्रांजिशन में ले जाके ऊपर की तरफ जाएंगे, फिर रूम टेम्परेचर में आके फिर हम +50 की तरफ जाएंगे। सो लाइक दैट देयर आर मेनी साइकिल्स। अभी ये सैटेलाइट तैयार हो गया, ये इसको रखते कहाँ है, तो राइट साइड में आप देखिए मैंने डिसअसेंबल व्यू दिखाया। हेलो, Hello, Arya. Hello, Arya. Can you? Okay, I'll mute her. Hello, anybody has to tell anything? Yeah, done, sir. Okay, shall I go ahead? Yes, sir. Okay. तो दिस यू कैन सी, दिस इज कॉल्ड पेलोड एडाप्टर, और उसके ऊपर यहाँ पे ये जो गोल्डन कलर का दिखता है दैट इज कॉल्ड क्रू मॉड्यूल। तो इट कैन बी क्रू मॉड्यूल, इट कैन बी पेलोड, और अंडर पेलोड वी कैन हैव अ सैटेलाइट।
तो जो सैटेलाइट का पिक्चर हमने पहले देखा था, ये पूरा सैटेलाइट ये सैटेलाइट के एडेप्टर के ऊपर यहाँ पे रखते हैं, और ये जो हीट शील्ड है वो इसके ये बंद हो जाती है, और ये इस फॉर्म में यहाँ पे आप देखिए ये जो एम्बलम और हमारा इंडियन फ्लैग है, दिस इज कॉल्ड हीट शील्ड। ये हमने उसको डिसअसेंबल व्यू में दिखाया, पूरे रॉकेट का डिसअसेंबल व्यू आप राइट साइड में देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे सैटेलाइट का एडेप्टर है, उसके ऊपर ये सैटेलाइट हमने यहाँ पे रख दिया, राइट। सैटेलाइट के एडेप्टर की हम बात करते हैं तो दो टाइप के मेजर है। एक सिंगल एडेप्टर जहां पे आपको एक ही सैटेलाइट अगर करना है तो बड़े एडेप्टर के ऊपर यहाँ पे आप एक सैटेलाइट देते हैं, और जब भी एक से ज्यादा, जैसे हमने आपको मालूम होगा अभी वैलेंटाइन डे जो हमारा था उसी दिन हमने 3 सैटेलाइट जो लॉन्च किए, तो मल्टी सैटेलाइट एडेप्टर। तो पहले उससे ज्यादा भी हमने 104 तक हमने एक रिकॉर्ड बनाया था ऑन ए गिवन टाइम, कि हमने एक साथ एक ही रॉकेट से इतने सारे सैटेलाइट हमने लॉन्च किए थे। वो कैसे होता है, तो दिस इज एन मल्टी सैटेलाइट एडेप्टर। वो एटले एक के बदले यहाँ से देखिए आप, ये मेन सैटेलाइट सबसे ऊपर रहता है, और बाकी छोटे छोटे सैटेलाइट ये सारी जगह पे ये हम ऐसे रख देते हैं, राइट। सो दिस इज कॉल्ड ए मल्टी सैटेलाइट एडेप्टर। और ये सैटेलाइट विच इज माउंटेड ऑन एडेप्टर विथ ए हीट शील्ड, उसका एक व्यू है। और ये दिस इज एन एक्चुअल फोटोग्राफ ऑफ अवर वन ऑफ अवर इमेजिंग सैटेलाइट व्हिच वाज जस्ट बीइंग हीट शील्ड को क्रॉस जस्ट करने से पहले लिया गया ये पिक्चर है। और बीच में ये हमारा ये जो जीएस सेट जो हमारा सैटेलाइट था उसका ये फोटो है, और हीट शील्ड दोनों तरफ ये दोनों इस तरह आके ये पूरा सैटेलाइट हीट शील्ड इसमें बंद हो जाती है, और बाद में सैटेलाइट इज रेडी टू बी लॉन्च। तो ये लॉन्च का अगर हम बात करते हैं तो लॉन्च होता कैसे, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉन्च टावर है यहाँ पे, और ये रॉकेट खड़ा है हमारा जीएसएलवी मार्क 3। अब जैसे ही मैं कमांड दूंगा तो आप देखेंगे कि राइट साइड में एक ग्राफ आएगा, उसमें 2 लाइन होगी। वन इज कि जो मेरा एस्टिमेटेड है कि मेरे सैटेलाइट को कौन से पाथ में जाना चाहिए, और दूसरा एक ब्लिंकिंग रेड कलर का एक ग्राफ उसको फॉलो करता जाएगा, वेदर दैट इज माय एक्चुअल पाथ ऑफ द रॉकेट, एंड यू विल सी इट इज एग्जैक्टली मैचिंग। और उसमें ग्रीन कलर के डॉट जो है वो अलग अलग टाइम के ऊपर होती दूसरी इवेंट है। तो ये जो सारी सीक्वेंस है कि जब लिफ्ट ऑफ होता है वहां से लेके कम से कम 16 से 18 मिनट आई एम टेंटेटिव टाइम, कि एक रॉकेट को जनरली आपको उस ऑर्बिट में किसी भी सैटेलाइट को वो वेरी कर सकता है टाइम, पर जनरली 16 से 18 मिनट के अंदर ग्राउंड से लॉन्च पैड के ऊपर से आपका रॉकेट जो है वो सैटेलाइट को 200 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे वहां पे लॉन्च कर देता है। तो ये सारी प्रोसेस के दरमियान आप देखेंगे, क्योंकि ये 3 स्टेज रॉकेट है, सपोज ये जीएसएलवी मार्क 3 यहाँ पे हमने दिखाया है, तो आप जैसे ही आप देखेंगे एनिमेशन में रॉकेट ऊपर जाता जाएगा, और अलग अलग टाइम पे जैसे ही जिस स्टेज का काम खत्म हो जाएगा तो वो वहां से डिटैच हो जाएगा, राइट। लेट अस सी दिस, नाउ वी कैन सी द लिफ्ट ऑफ। राइट साइड में आप देखिए एक ब्लिंकिंग डॉट जा रहा है। अभी 110 जो ये है उसका सबसे पहला जो स्टेज है, ये सेपरेशन हो गया आपके बूस्टर का। उसके बाद जो हीट शील्ड सबसे ऊपर है वो अलग हो जाएगी, क्योंकि अभी सैटेलाइट एटमॉस्फेयर से बाहर हो गया, अभी हमको सैटेलाइट दिख रहा है, दैट इज द ब्लू कलर सैटेलाइट। इतनी चीजें नीचे गिर गई है, राइट। अभी हमें क्या होगा, सबसे पहला चीज जो लिक्विड स्टेज है वो अभी सेपरेट हो जाएगा, इट इज सेपरेटेड। अभी देखिए सैटेलाइट जो पहले वर्टिकल जा रहा था पूरा रॉकेट, नाउ इट इज टेकिंग टर्न, हाँ। तो एक पैराबोलिक पाथ के अंदर वो धीरे धीरे आगे चल रहा है। अभी वो कॉस्टिंग फेज में है, राइट। और अभी आप देखिए कि वो उसका ये जो क्रायोजेनिक इंजन है वो अभी ऑन है। आप नोजल के अंदर से देखिए वो गैस बाहर निकल रही है, जो कि एक आपको एक्शन दे रही है, और रिएक्शन की तरह राइट साइड में हमारा रॉकेट प्रोपेल कर रहा है। अभी नेक्स्ट जो हमारी इवेंट है यहाँ पे, वहां पे ये शट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि उसको सफिशिएंट एल्टीट्यूड और वेलोसिटी मिल गई है। अभी वो गैस बंद हो गया यहाँ पे, राइट। ये यहाँ पे एल्टीट्यूड पे आ गया, एंड नाउ satellite is separated. This is how, right, everything is done. अब एक बार सैटेलाइट वहां पे पहुंच गया, उसके बाद हमें करना क्या है कि उसको पावर तो चाहिए इमीडिएटली। तो पावर अगर चाहिए तो सोलर पैनल चाहिए, तो सोलर पैनल को डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो वो ग्राउंड से, क्योंकि वो फोल्डेड कंडीशन में है,
तो फोल्डेड कंडीशन में से जब ग्राउंड से कमांड देते हैं तो वो सोलर पैनल है वो डिप्लॉय होगी। वो कैसे होगी, क्योंकि कमांड ग्राउंड से है, सैटेलाइट के अंदर सारी सोलर पैनल है। तो एक देखते हैं सोलर पैनल डिप्लॉयमेंट का एक्चुअल वीडियो है जो हमने ग्राउंड टेस्टिंग के दौरान लेबोरेटरी में जो हमने लिया था, उसका आप देखिए यहाँ पे। तो ये आप देखिए ये सैटेलाइट जो है ये स्ट्रक्चर के ऊपर ये बिठाया हुआ है, और दिस इज दैट सोलर पैनल विच विल बी डिप्लॉयड, राइट। दिस इज द सोलर पैनल विच इज लाइकली टू बी डिप्लॉयड। हाँ, और उसकी अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं ग्राउंड के ऊपर, राइट, एंड यू विल सी दैट। And see it is folded and it is in three section, 1 2 और 3, और ये पूरा खुल के एग्जैक्टली ऐसे ही स्पेस में इनका डिप्लॉयमेंट होता है और वो लॉक हो जाएगा। एक बार लॉक हो गया फिर वो इसी कंडीशन में रहेगा। तो जैसे कई सैटेलाइट में दोनों तरफ सोलर पैनल है तो दोनों तरफ होगा, तो सोलर पैनल जैसे ही ओपन हो गई तो आपका पावर मिलने लगा। द मोमेंट यू गेट द पावर यू स्टार्ट, आप सारी सब सिस्टम को 1 बाय 1 ऑन करना है तो आप कर सकते हैं। तो लेकिन उसकी फोल्डिंग ऐसे करते हैं, जगह आप देखिए तो फोल्डिंग के ऊपर जब आप ट्रांसफर ऑर्बिट में तब भी आपको कुछ पावर तो चाहिए, तो कुछ जो एक सेक्शन के जितने सोलर सेल है वो एक्सपोज रहते हैं इवन फोल्डेड कंडीशन के अंदर, तो उतना पावर आप वो जो वहां पे जनरेट होता है दैट इज सफिशिएंट फॉर योर हाउस कीपिंग, जब आपका आप वो ट्रांसफर ऑर्बिट में। और उसके अंदर बैटरी भी होती है, तो बैटरी के बैकअप से भी, क्योंकि चार्ज करके हम लिथियम आयन बैटरी भी अंदर रखते हैं जो कि आपको उसके बाद में एक बार आपकी सोलर पैनल खुल गई तो आपकी बैटरी गेट्स चार्ज पावर विच इज कमिंग फ्रॉम द सोलर पैनल। तो अभी ये हो गया, अभी आपको कम्युनिकेट करना है तो आपकी एंटेना जब तक डिप्लॉयड, ये तो फोल्डेड कंडीशन में है तो आपको एंटेना का भी डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो एंटेना डिप्लॉयमेंट के लिए उसको टेस्ट कैसे करेंगे, तो टेस्ट करने के लिए क्या है कि आप देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आप ये मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ये देखिए दिस इज दैट 0G टेबल, राइट। क्योंकि वहां पे जी फोर्स बहुत ही कम है तो हम पे उसको 0G, ये यहाँ से ये नीचे अपवर्ड उसको जो लिफ्ट सपोर्ट देता है, सो दैट इतना सारा जितना भी वेट है खुद का एंटेना का, क्योंकि ये ग्राउंड पे टेस्टिंग हो रही है तो उसको ग्रेविटी का फोर्स लगेगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए ये जो टेबल है यहाँ से वर्टिकल ये उल्टा सपोर्ट देते हैं, ये पूरा मूवमेंट इसके ऊपर होता है, तो इसको हम 0G फिक्सचर बोलते हैं। और इसी के ऊपर रोल करके इसकी टेस्टिंग हो रही है, सो दैट यू कम टू नो वेदर योर डिप्लॉयमेंट कितने टाइम में होगा। ये सब कैलकुलेटेड है कि आपका फुल डिप्लॉयमेंट के लिए इतना सेकंड लगना चाहिए, उतना सेकंड लगा दैट मींस इट इज फुल्ली डिप्लॉयड, राइट। सो लेट अस सी हाउ दैट वो कमांड देने के बाद वो कैसे काम करता है। It is getting rolled on the 0G fixture table. Now it is locked. Right? एक बार ये लॉक हो गया तो फिर अभी फोल्ड वहां पे नहीं होगा, तो दिस some mechanism specially made. Now the interesting thing is what you see all this foil, it is nothing but MLI, multi-layer insulating blanket, which is used as one of the major element for better thermal control of the spacecraft, right? Antenna deployment, and this is my last slide today. Time हो गया है, मुझे नेविगेशन के बारे में भी बताना था, but we'll take some other occasion. दो नॉट रिलेवेंट, बट ये स्लाइड मैंने क्योंकि बहुत ही इंटरेस्ट की लोगों में भी चीज़ें, स्टूडेंट भी काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं इसके बारे में। गगनयान जो कि हम थोड़ा बिकॉज ऑफ पैंडेमिक हम थोड़ा इसमें डिले हो गया है मिशन के अंदर। तो दिस इज एन ऑर्बिटल मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन, आप लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पे, तो ये देखिए ये जो है यहाँ के ये जो है उसके अंदर यहाँ पे तीन हमारे जो व्योमनॉट है इसके अंदर बैठ के जो ये क्रू मॉड्यूल है इसके अंदर जाएंगे, और ये हमारा सर्विस मॉड्यूल है, ये दोनों का इंटीग्रेटेड फॉर्म है, दिस बिकम्स एन ऑर्बिटल मॉड्यूल। तो करीब करीब 7 टन का वेट है
दिस इज पार्ट ऑफ गगनयान। और ये जो है ये हमारा ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल GSLV Mark 3 है। ये देखिए यहाँ पे हमने इसको बिठाया है। तो रॉकेट के सबसे ऊपर वाले हिस्से के अंदर ये हमारा क्रू मॉड्यूल होगा, जिसके अंदर क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल होगा। इसके अंदर 3 हमारे एस्ट्रोनॉट बैठेंगे जिनका सिलेक्शन हो चुका है। ये 400 किलोमीटर की ऑर्बिट के अंदर अराउंड 1 वीक टाइम, एक हफ्ते के लिए, अभी जो प्रोग्राम, अभी जो मिशन प्लानिंग है वो एक हफ्ते तक वो पूरा क्रू मॉड्यूल वहां पे हम उसको रखेंगे। जो भी पहले से प्री डिसाइडेड एकेडेमिया और डिफरेंट इंस्टीट्यूट मिलके जो सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो करने के बाद देन वी विल have to bring them back safely back to earth, which is more challenging than launching them, right? So this is what, and this is geostationary orbit। आप देखिए इतने सारे सैटेलाइट जियो ऑर्बिट में डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर ऑलरेडी है। तो कई बार हम बोलते हैं कि दो स्पेस इज अबंडेंट, देयर इज नो स्पेस इन स्पेस, एटलीस्ट फॉर कम्युनिकेशन सैटेलाइट, फॉर पार्किंग। तो रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, हैव टू बी वेरी केयरफुल। और लो अर्थ ऑर्बिट तो आप देखिए इतनी सारी, यहाँ पे आप देखिए कि ये जो आप देख रहे हैं, तो आपको व्हाट डू यू सी दिस, ये इतने सारे, ये आप देखिए आपको क्या दिख रहा है, दीज आर ऑल सैटेलाइट्स। इतने सारे सैटेलाइट जो हम लोअर ऑर्बिट की बात करते हैं, इतने सारे घूम रहे हैं। तो ये जो डेब्रिस बनती है, डेब्रिस सैटेलाइट की कम बनती है, क्योंकि जो लोअर ऑर्बिट पे सैटेलाइट रहते हैं उसकी एंड ऑफ लाइफ पे वो थोड़ा सा पुश ग्राउंड की तरफ देके देयर जर्नी स्टार्ट्स टुवर्ड अर्थ, एंड व्हेन दे एंटर इनटू एटमॉस्फेयर दे बर्न अप ड्यू टू फ्रिक्शन, वेरी हैवी फ्रिक्शन। और जो बहुत दूर के सैटेलाइट है जैसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर, उसको हम फर्दर 4000 किलोमीटर डीप स्पेस में उसको एकदम पुश कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड ग्रेवियर ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट, राइट? So this is how it is done. So thank you very much for patient listening, and we can take few questions if people have, right? Thank you, sir. I would request all the participants to ask you a question in Q&A section under Okay, activities. Atharva. Just a minute, I'll text him. Hello. Wait, sir, I'll call him. Sir, we have one question in the question and answer section. The question is, what is use of TTC? Use of TTC. Yeah. That is telemetry and telecommand, right? तो telemetry, as I told you that आप सैटेलाइट की जो भी हेल्थ है उसको मॉनिटर करने के लिए, क्योंकि आप देखिए हमें अगर बुखार आता है तो हम क्या करते हैं, थर्मामीटर लेके देखते हैं कि हमारा टेम्परेचर जो है वो अभी 98 से बढ़ गया है, तो हम बोलते हैं बुखार आया है। सो तो अगर थर्मामीटर इज ए टूल, तो लाइक दैट, तो वहाँ पे जितने भी हमारे सब सिस्टम है तो उसमें 2 प्रकार की टेलीमेट्री होती है, एक तो एनालॉग होती है और एक डिजिटल होती है। तो उसकी कोई भी सब सिस्टम की हेल्थ है वो मॉनिटर करने के लिए, और हर एक सब सिस्टम की हेल्थ अलग अलग टाइप से आती है। जैसे पावर एम्पलीफायर जो कि बहुत गर्म होता है और गर्मी भी, मतलब हीट भी ट्रांसफर करता है, तो उसके अंदर सिर्फ टेम्परेचर की टेलीमेट्री होगी। तो दूसरे कोई प्रोपेलेंट है तो उसके अंदर लेवल की होगी, राइट? तो अलग अलग टाइप की टेलीमेट्री से जो वहां से हमें यहाँ पे मिलती है, उसको इंटरप्रेट करके हम बोल सकते हैं कि ये सिस्टम का टेम्परेचर अगर इतना कम है या इतना ज्यादा है, दैट मीन्स whether that subsystem is functioning okay or it is having some problem. That is telemetry. Telecommand, that means when you want to give some command to satellite, that is called telecommand, right? So telemetry and telecommand, that is called TTC. One is measuring and knowing the health or parameter of the satellite, and another is giving command to the satellite. So one is talking to satellite, one is knowing about the health of the satellite. Yeah, thank you so much, sir.
There is one more question. First of all, she's saying thank you for this amazing session. Thank you, sir. The question is, when the parts are detached, then what about that parts? Where does they go? Okay, so if you see, there are two phases of a rocket. One is within atmosphere, and another is beyond atmosphere. So our atmosphere is roughly 100 to 110 kilometer. So that is the way, if you would have given a little attention on that launch animation, after 100 and about 100 to 110 kilometer, the heat shield got separated, right? Because now the atmosphere ends. So that means ड्यूरिंग एटमॉस्फेरिक फेज, जैसे हमारे बूस्टर डिटेच हो गए और हमारा हिट शील्ड डिटेच हो गया, तो वो क्या होगा, दैट विल स्लोली कम डाउन बिकॉज ऑफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. और ये हमारे सारे लॉन्च अगर हम देखें तो श्रीहरिकोटा से करते हैं, श्रीहरिकोटा से ईस्टवर्ड डायरेक्शन में करते हैं, जो बे ऑफ बंगाल के ऊपर से जाता है हमारा रॉकेट. तो ये जो भी स्पेंट पार्ट रॉकेट के हैं जो डिटेच हो गए हैं, वो अगर गिरते हैं तो वो बे ऑफ बंगाल के अंदर गिरेंगे. एंड वी डोंट लिव इट लाइक दैट ओनली. तो हमारे जो स्पेशल रिकवरी बोट्स जो है वहाँ पे जोन में घूमते रहते हैं, एंड दे नो एग्जैक्टली इन विच डायरेक्शन, एट हाउ मच डिस्टेंस, एट व्हाट टाइम इट इज लाइकली टू फॉल. तो वो उसको रिकवर भी कर लेते हैं, राइट. और जो चीजें, जो पार्ट रॉकेट के एटमॉस्फेरिक फेज के अंदर डिटेच होते हैं बहुत ऊपर की तरफ, राइट, तो वो क्या होता है कि वो देन दे फॉर्म जैसे लास्ट पार्ट ऑफ ए रॉकेट. हाँ, जैसे लास्ट स्टेज है, वहां से हमने सैटेलाइट को वहां अंदर छोड़ दिया, सो दैट बिकम्स ए डेब्री, राइट. तो वो डेब्रीज क्योंकि बहुत ऊपर की तरफ रहती है, तो ये सारी चीजें दे फॉर्म ए डेब्री. और उसके अंदर जो सैटेलाइट की एंड ऑफ लाइफ आती है, तब हम उसको एकदम 4000 किलोमीटर डीप उसकी ग्रेवियर्ड ऑर्बिट में उसको स्पेंड कर देते हैं. और रॉकेट की अगर बात करते हैं तो वो तो 200 किलोमीटर तक ही जाता है, अगर मैं इसरो के रॉकेट की बात करता हूँ तो अप टू 200 किलोमीटर के बाद जो भी स्पेंट पार्ट अलग हुए तो वो धीरे धीरे तो नीचे आएंगे ही. और हमारी फर्स्ट ऑपरेशनल ऑर्बिट जो है वो 400 या 500 किलोमीटर से हम शुरू करते हैं. तो वहां से जब वो बिकॉज ऑफ लेटेंट ग्रेविटी स्लोली वो नीचे आते जाएंगे, और नीचे आते ही एट द टाइम ऑफ एंटरिंग एटमॉस्फेयर इट विल बर्न अप इनटू एशेस. Yeah, thank you so much, sir. So next question is, how is the cryo stage different from solid and liquid boosters? See, so the booster word is given, it is nothing but why the word is known as booster, because it gives an extra thrust to the rocket. तो लिक्विड जो पहला स्टेज है वो लिक्विड स्टेज है, उसके बाद में क्रायोजेनिक स्टेज है. तो ये जो लिक्विड स्टेज नाम जो हमने दिया, बिकॉज दैट प्रोपेलेंट इज लिक्विड प्रोपेलेंट, लिक्विड फ्यूल हम यूज करते हैं, ठीक है. और क्रायोजेनिक की बात जब हम करते हैं क्रायोजेनिक का, तो इट इज अगेन ए डिफरेंट फॉर्म ऑफ लिक्विड फ्यूल ओनली, लेकिन उसके अंदर हम लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का यूज करते हैं. तो जब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एकदम कंप्रेस करके एकदम लो टेम्परेचर पे लाते हैं, तो instead of occupying a large volume, now it occupies a very small volume. तो आपको बहुत ही ज्यादा थ्रस्ट और एफिशिएंसी अगर स्पेसिफिक इम्पल्स चाहिए, सो यू ऑलवेज यूज ग्रेटर अमाउंट ऑफ फ्यूल. तो अगर इतना ज्यादा फ्यूल आपको यूज करना पड़ा तो आपकी बड़ी चैम्बर कितनी, टैंक कितनी बड़ी हो जाएगी. तो इतनी बड़ी टैंक कैरी करना प्रैक्टिकली मुश्किल है. तो उसके लिए उसको वॉल्यूम कम करने के लिए आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंप्रेस करके उसको लिक्विफाई कर दीजिए. तो इन द प्रोसेस दे कम टू ए वेरी लो टेम्परेचर, -185 और इसके आसपास वो टेम्परेचर आ जाता है. सो देन विद दैट टेम्परेचर दोज बिकम्स एंड क्रायोजेनिक स्टेट. तो वो उस टेम्परेचर पे हम उसको क्रायोजेनिक बोलते हैं. तो ये क्रायोजेनिक जो हमारा प्रोपेलेंट या हमारा जो फ्यूल है, उसका स्पेसिफिक इम्पल्स बहुत ज्यादा होता है. तो जितनी अमाउंट, जितना आप फ्यूल बर्न करेंगे कंपेरेटिवली, उससे बहुत ज्यादा थ्रस्ट और ज्यादा पावर, ज्यादा एनर्जी आपको रॉकेट के लिए मिलेगी. तो सॉलिड फ्यूल के अंदर हम उसको सॉलिड फ्यूल यूज करते हैं, लिक्विड फ्यूल के अंदर लिक्विड फॉर्म में यूज करते हैं, जैसे मोनोमीथेन, हाइड्रोजन, MMH होता है.
और HTPB हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडीन होता है, तो उसके साथ डिफरेंट टाइप के ऑक्सीडाइजर होते हैं। लिक्विड फ्यूल प्रोपेलेंट जो है उसके अंदर लिक्विड का फ्यूल और ऑक्सीडाइजर अलग अलग टैंक में होते हैं। सॉलिड प्रोपेलेंट की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर फ्यूल और ऑक्सीडाइजर दोनों एक साथ पहले से प्री मिक्स रहते हैं, उसको हम अलग अलग नहीं रखते हैं, प्री मिक्स एक ही कंपाउंड में होता है। उसमें फायदा यह है सॉलिड का कि आपको थ्रस्ट बहुत ज्यादा देता है। डिसएडवांटेज यह है एक बार आपने इग्नाइट कर दिया देन यू कैन नॉट कंट्रोल। वेयरएज लिक्विड में फायदा यह है कि जब आप उसको, इट इज अ थ्रॉटलेबल थिंग, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो आपने इंजन को फायर किया, आपको रिक्वायर्ड वेलोसिटी और थ्रस्ट मिल गया, अभी जरूरत नहीं है आपको कॉस्टिंग फेज में जाना है तो इंजन को बंद कर दो। इंजन को जैसे बंद कर दिया, आपके थोड़ी देर के बाद आपको लगा कि फिर से आपको वो जरूरत है, उसको आप ऑन कर दो, तो इट इज थ्रॉटलेबल इंजन। तो लिक्विड का जो टेक्नोलॉजी है उसका ये फायदा है। और क्रायोजेनिक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, इट गिव्स वेरी स्पेसिफिक हाई स्पेसिफिक इंपल्स व्हिच गिव्स यू कंपैरेटिवली आपका कम अमाउंट ऑफ फ्यूल के अंदर आपको, क्योंकि वो कंडेंस है, राइट, तो बहुत बड़ा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने के बदले छोटे वॉल्यूम में बहुत ज्यादा एनर्जी वाले ये आप प्रोपेलेंट स्टोर करके ले जा सकते हैं। Yeah, thank you so much, sir. Few more questions. Like from my side, I would like to ask, like, uh, when we receive signals from antenna, then how it is interpreted or data, how the data is processed. Like, is there any like, are there any stages or something? ये देखिए ऐसा है कि सपोज मैं यहाँ ग्राउंड से एक सिग्नल भेज रहा हूँ और हमने बताया था कि सी बैंड की बात करते हैं तो 5.9 to 6.4 गीगाहर्ट्ज मैंने बताया था, 500 मेगाहर्ट्ज। तो उसमें से जो भी सिग्नल हम वहां पे सैटेलाइट की तरफ भेजेंगे तो सैटेलाइट की जो एंटेना है वो एंटेना की डिजाइन भी इसी फ्रीक्वेंसी पे होती है। तो वो 5.9 to 6.4 गीगाहर्ट्ज के बैंड के अंदर आए हुए सिग्नल को ही रिसीव कर पाएगी, क्योंकि वहीं पे उसका परफॉर्मेंस पिक पे रहेगा। बाकी आप साइड बैंड में देखेंगे तो बहुत ज्यादा रोल ऑफ होगा, इतना रोल ऑफ होगा कि उस सिग्नल को वो डिटेक्ट ही नहीं करेगा। तो दैट मीन्स जो भी सिग्नल आप 5.92 उस फ्रीक्वेंसी रेंज में, मतलब अब हम फिगर को भूल जाते हैं, जो भी फ्रीक्वेंसी के लिए आपका एंटेना डिजाइन किया है उसी फ्रीक्वेंसी रेंज का सिग्नल ग्राउंड से आप भेजेंगे तो उसी बैंड को वो रिसीव करेगा, राइट। वो रिसीव करने के बाद वो इमीडिएटली नेक्स्ट उसका जो सब सिस्टम है उसको पास करेगा। उसमें मैंने आपको बताया था कि एक लो नॉइज एम्पलीफायर है, फिर फिल्टर होता है, फिर उसको हम 500 मेगाहर्ट्ज को सब डिवाइड करके अलग अलग 12 चैनल में डिवाइड कर देते हैं, फिर इंडिविजुअली उसको एम्पलीफाई करते हैं। एम्पलीफाई करने के बाद उसको रिकम्बाइंड करते हैं और पूरे 500 मेगाहर्ट्ज के बैंड को हम ट्रांसमिटिंग एंटेना से ग्राउंड की तरफ सैटेलाइट से हम उसको रिट्रांसमिट। Okay, sir. Like, but what if a dummy station or a fake station sends these signals to the antenna or to the satellite? Then हाँ, दैट इज व्हाई इट हैपेंस मेनी टाइम्स ना। तो कोई फ्रेंड एंड फो बोलते हैं ना, तो कई लोग इंटेंशनली या अनइंटेंशनली उसी डायरेक्शन में, जब अननोइंगली, क्योंकि ये सारी चीजें रेगुलेटेड होती है। कोई भी चीज जैसे नोन थिंग है, कोई भी एजेंसी या कोई भी अर्थ स्टेशन, उसको कभी भी वो कोई भी फ्रीक्वेंसी पे किसी भी डायरेक्शन में अगर उसको ट्रांसमिट करना है तो इट हैज टू इन्फॉर्म, उसको पता होता है, हमको भी, ठीक है, ये कहाँ से आता है, कौन से, ये सारे एक कैटलॉग होता है। लेकिन अननोइंगली किसी को अगर मिसचीफ करनी है तो बाय मिसचीफ वो करता है तो डेफिनेटली सैटेलाइट को वो मतलब इंटरफियरेंस आता है। आपको होगा कुछ नहीं कि आपको एक की जगह दूसरा सिग्नल भी दिखेगा तो आपको इससे डिस्टॉर्शन आएगा, यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई योर ओन सिग्नल। तो इसके लिए स्पेशल एक टेक्निक कई कई बार हम ऑन बोर्ड भी हम यूज करते हैं उसको आइडेंटिफाई करें। इसीलिए हम बोलते हैं कि इसका लिनियरिटी और इसका डिस्टॉर्शन मिनिमम होना चाहिए, राइट। तो जनरली ये सब कैटलॉग्ड और कंट्रोल्ड वे में होता है, लेकिन अननोइंगली और नोइंगली इंटेंशनली अगर कोई ऐसे ट्रांसमिट करता है तो आंसर इज यस, समटाइम वी फेस सम प्रॉब्लम्स। thank you so much, sir. There is one more question in the section. For student satellites, can you tell us some payload ideas? Like, they are asking some ideas for student satellites. What payloads that can be done? So they are generally much simplified and lesser weight, right? And they do not have the order of
complexity of the order which we have generally in our routine communication, commercial or this kind of satellite. They are generally made to how a satellite is made, how a मिनिमम सब सिस्टम, और जनरली उसमें आप देखेंगे तो उसके अंदर जो पेलोड रहता है, वो पेलोड जो आपका बनेगा वो मोस्टली आपका अपर एटमॉस्फेयर के जो डेटा है और उसके जो वेदर है उसको मॉनिटर और उसको मेजर करने वाले पेलोड या इंस्ट्रूमेंट रहते हैं। कि जैसे ही आपका सैटेलाइट ऊपर गया तो वहां पे टेम्परेचर क्या है, राइट, वहां पे ह्यूमिडिटी क्या है, तो ऐसी जो कुछ लिमिटेड पैरामीटर है वो मेजर करने का कभी कभी, और एडवांस सैटेलाइट बनते हैं तो आप उसमें और थोड़े सोफिस्टिकेशन ऐड कर सकते हो। वो बहुत सिंपल रहता है, उसको आपको स्टेबलाइजेशन करने के लिए इतनी सारी सब सिस्टम की जो हम बात करते हैं, इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी उसमें नहीं होती है। दे आर रिलेटिवली मच सिंपलर एंड स्मॉलर एंड दे आर, अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया कि कोई भी सैटेलाइट के मेन चीजें क्या क्या है सैटेलाइट बनाने के लिए, तो थर्मल सिस्टम है, तो ये स्टेबलाइजेशन की सिस्टम है, आपको ये सोलर पैनल भी चाहिए। तो सोलर पैनल आपको डिप्लॉयबल नहीं चाहिए, वहां पे आपको फिक्स से भी काम चलेगा। अगर आपका लिमिटेड यूज है तो आप बैटरी से भी काम चला सकते हो, राइट। तो ए लिमिटेड वर्जन ऑफ एन एक्चुअल सैटेलाइट इज मेड इन स्टूडेंट्स। Yeah, thank you so much, sir. Does anyone have any query? You can unmute or post in the Q&A session, or even you can post your feedback to the sir. Like you can say something. How was the session and all. Hello, sir. So, do we need to show the yesterday's video? No, I think it's okay. Okay. So, if anyone have any question, please come up. Okay. Pawan Bansode is asking that it means are solar panels using satellite different from the regular ones? So, Okay, so basically you see that function of a solar panel is to convert the solar energy into electrical energy, right? But as I told before, if you remember, that anything which you make on ground, you can afford some relaxation because you can repair it, you can replace it, many things is possible. But the same thing, if you want to make it and if you want to put it into space, you pay attention on so many things. Why? The reason is very simple. We cannot replace it, we cannot repair it. So likewise, the solar panel which is made on a satellite, they are much rugged, number one. नंबर टू, दे आर हाईली एफिशिएंट, वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होनी चाहिए। तो पहले जो सिलिकॉन के टाइप के जो मटेरियल है उससे यूज़ करते हैं, अभी आजकल गैलियम आर्सेनाइड का मटेरियल यूज़ करके हम इसको बनाते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जितना एरिया अवेलेबल है, तो ग्राउंड के ऊपर तो आपने देखा होगा, आपका जितना बड़ा घर है वो घर की सारी जो रूफ है आप पूरी रूफ को कवर कर सकते हैं सोलर पैनल से। सैटेलाइट में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके पास जितना एरिया अवेलेबल है उसी के ऊपर आपको ये सोलर पैनल लगानी है। तो आपको ये भी सवाल आएगा कि भी अगर फोल्डेबल करनी है तो एरिया की लिमिटेशन क्यों है? लेकिन फोल्डेबल वो सारी लाइफ टाइम तो फोल्डेबल नहीं रहेगी, वो तो ट्रांसफर ऑर्बिट तक ही रहेगी। जैसे ही अपनी इंटेंडेड ऑर्बिट में जाएंगे, यू हैव टू गिव कमांड एंड डिप्लॉय इट। तो डिप्लॉयमेंट के बाद प्रैक्टिकली कितनी बड़ी सोलर पैनल आप बना सकते हो, राइट। और उसको फोल्ड करने के बाद आपके जो एनवेलप है रॉकेट का, जो नोजकोन है, उसके एनवेलप के अंदर उसकी कंपेटेबिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि आप फोल्ड करके भी इतनी बड़े स्ट्रक्चर बन गया कि सैटेलाइट से भी बड़ा सोलर पैनल बन गया, तो वो आपका रॉकेट के नोजकोन के अंदर जहाँ पे हीट शील्ड है, दोनों हीट शील्ड के बीच में, वहां पे एकोमोडेट ही नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीजें, जैसे ही आपने रॉकेट तय कर लिया तो उसका स्ट्रक्चर आपको मालूम है, उसका नोज कोन, उसकी हीट शील्ड का डायमेंशन मालूम है। तो अगर डायमेंशन मालूम है तो आपको ये भी पता चल गया कि भी अभी आपके पास कितना एरिया अवेलेबल है, तो उससे बड़ा वॉल्यूम की कोई भी चीज आप उसके अंदर नहीं रख सकते। तो दीज आर द लिमिटेशन। तो उतने के अंदर आपको एरिया पता चल गया, तो उतने एरिया में आपको पावर कितनी चाहिए वो भी मालूम है। वो कैसे डिसाइड करेंगे कि आप
आपने कितने सब सिस्टम रखे हैं, जितने सब सिस्टम रखे हैं तो उसकी पावर की कैलकुलेशन भी मालूम है आपको। जैसे हम छोटे से घर के अंदर 2 फैन है, 2 ट्यूबलाइट है और एक दूसरा लैंप कुछ चलाते हैं तो नॉर्मल पावर से चल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम गैजेट बढ़ाते जाते हैं, रेफ्रिजरेटर आया, ओवन आया और 2 एसी लगाए, 3 एसी लगाए, तो आपकी पावर की डिमांड बढ़ जाती है, बढ़ने लगती है। तो लाइकवाइज आप जितना 500 किलोग्राम का सैटेलाइट और 6000 किलोग्राम का सैटेलाइट, 2 ट्रांसपोंडर से लेके 56 टू 57 ट्रांसपोंडर, जितना आप बढ़ाते जाओगे पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। तो आपको पावर भी ज्यादा चाहिए। पावर आएगा कहां से? सोलर पैनल से। सोलर पैनल पावर कहां से लाएगी? जितने ज्यादा सोलर सेल आपने उसके ऊपर रखे हैं, नंबर ऑफ सेल जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ सनलाइट उसके ऊपर गिरेगा, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल पावर, राइट। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए यू नीड टू हैव a area limitation, and in a given area to produce the required number of required amount of electrical power, you should have a solar cell which are efficient. उसकी efficiency इतनी होनी चाहिए कि आपको उतना पावर मिले, not only at the BOL, that is beginning of life, but definitely at the EOL, that is end of life में भी आपको मिनिमम जितना पावर चाहिए उतना मिले, उतना कैलकुलेशन करके आपको बनाना पड़ेगा। Okay, so basically, any more questions you can please put up in the question and answer section. Why won't we use nuclear energy satellites to increase the lifespan? It is very efficient and much better, definitely, than compared to all other this thing. But the question is, why we are not attempting is because of its nature, very nature. It is very hazardous. So you can, and you know ना कि आप वो 1 से 2, 2 से 4 कर करके वो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो कंट्रोल्ड वे में अभी उसके ऊपर कई लोगों ने इसके ऊपर भी काम किया है और लिमिटेड वे में उसका यूज भी होता है। बट एट इसरो so far we are not attempting and we are not using because it is much difficult to control those particular. Okay, so I guess most of the questions has been covered. So yes, M1, yeah. Can you explain the shake test to check the durability and stability of satellite? Say that again. She's asking, can you explain the shake test, that is vibration test? वाइब्रेशन टेस्ट में क्या है? आप देखिए कि कोई भी चीज जब हम रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो लॉन्च के समय ही ये वाइब्रेशन सबसे ज्यादा आते हैं। वंस द सैटेलाइट गोज इनटू ऑर्बिट उसको इतना ज्यादा वाइब्रेशन नहीं लगता। हेलो, Okay. How many of you have these are all these numbers, right? They are ये पहले से इनको जैसे ही रॉकेट की ये जब डिजाइन ये कंप्लीट होती है तो इसके जो सारे मैकेनिकल शॉक्स और जितने भी लोड है ये इनकी वैल्यू पता होती है। उसको विस्टैंड करने के लिए जो स्ट्रक्चर बनाते हैं और जो सबसिस्टम बनाते हैं तो वो उतना वाइब्रेशन झेल पाएगी या नहीं, वेदर इट विल बी एबल टू होल्ड दोज वाइब्रेशन। तो उसके लिए एक वाइब्रेशन का फिक्सचर रहता है, टेबल रहता है। वो टेबल के ऊपर जनरली साइन एंड रैंडम 2 टाइप के वाइब्रेशन के टेस्ट वहाँ पे होते हैं और कितने जी उस पे एक्सपेक्टेड है उतना आपको वहां पे टेबल के ऊपर आपकी सिस्टम सब सिस्टम को वहां पे फिक्स करना है एंड यू हैव टू प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर वाइब्रेशन ऑन द फिक्सचर एंड एक टाइम, कितने टाइम के लिए उसको रन करना है वो रन करके उसके प्लॉट हम निकालते हैं और निकाल के हम ये देखते हैं कि वेदर इट हैज पास दैट पर्टिकुलर टेस्ट और नॉट। तो वाइब्रेशन टेस्ट का मकसद सिर्फ यही है कि जब लॉन्च होता है उस समय ये पूरा जो वाइब्रेशन का जो इम्पैक्ट आता है सब सिस्टम और जितने भी पार्ट है उसके ऊपर, तो ये लॉन्च के जो लोड है वो लोड को जस्टिफाई करने के लिए और उसको पूरे सिस्टम को सेटिस्फाई करने के लिए वाइब्रेशन टेबल के ऊपर ये वाइब्रेशन के टेस्ट हम करते हैं।
Yeah, thank you very much, sir. I hope all the questions have been answered. No more questions are there. So thank you, sir, for this amazing session. Like you took out time for our students. Atharva, Yes. I would like to request all participants to please switch on your camera so that we can see each other and sir can also have some view of the your. So please switch on your camera, everyone. We'll just take a group photo or a screenshot, we can say. Santosh sir, I guess you are on mute. Yeah, Atharva, please tell me. Yeah, thank you everyone. Very nice to have you all here. Thank you for your support. Please fill the feedback form. Yes, I request all the students to please mark their attendance in the poll section and fill the feedback form, as this is going to be the mode to mark your attendance and your performance on this workshop. So before leaving, please do it. We are giving a 1 minute of time for that. So please, I thank Joshi sir and Nagarani sir who has been a support for this workshop and giving such a nice workshop. Thank you very much, students, for patient listening. And I thank Indo-Science Education Trust to provide me an opportunity to interact with the student. My student, if you have any question which are still not asked and you think that you have something in mind you wanted to ask but have not asked, please feel free to send it through myself. I will definitely answer. Yes, there is a section in feedback form where you can ask your question, which will be shared to the sir. Thank you so much, sir. It was indeed a great session. Thank you, sir. Thank you. After filling feedback form and presentation attendance, you can leave the meeting. Can I log off? Yes, sir, sure. Okay.